आवाज आ रही है? अब भाई इतनी तेज क्यों आ रही है? मेरे को गुस्सा आ रहा है। एंजाइटी हो गई है। बोला आराम कर, यहाँ तक आ रही है, तू चुप होते हैं वहां से चक चक चक। अरे अरे भैया, ओम को जो आटे का आटे देव ठीक है, करे चालू। कर दे ब्रो। आज पूरा मार्केट की स्थिति हो चुकी है। हाँ तो मार्केट कहा था मैं तेरे को, इसको तो बहुत गिरा है। बहुत गिरा है आज तो। आज कुछ 700-800 गिरा है। मेरे साथ श्री रघुनाथ जी कृष्ण किसी बात की चिंता शरण चिंता। अब देखिए काके मेरे पढ़ ले। देखो अब अपने क्या है, अपने को तो क्या बहुत सारा पढ़ना है। देखिए अगला फिर 19 बहुत ज्यादा है भाई, 2 दिन लग जाएंगे। आज में आधा आधा कर लेते हैं। तो पढ़ो। पढ़ो पढ़ो। रुक जा। सो एक्सपी। ठीक है, क्या क्या है इसमें परफॉर्मेंस? अच्छा ये भी सो एक्सपी है क्या? ये 19 मिनट का और ये कितना मिनट का? तो सभी के सारे मैं पहला पढ़ता हूँ तो दूसरा पढ़ी भाई। डिस्कस करूंगा मैं। एक चलते हैं दो, क्या? ये 3 4, और भाई 5। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, फिर ये मेरा, फिर ये तेरा। क्या मतलब समाप्त करेंगे यार, बारे में मुझे पता करा मुझे। हाँ तो ये पहले 3 कर लेते हैं, ठीक है। ये चार चार कर लेते हैं। हाँ कल हाँ, तीन कर 3 लेते कर हैं, लेते चलिए हैं, ठीक। फिर कल शायद 3 कर लेंगे, या 4 देखेंगे तो 4 देखते हैं। नहीं नहीं, तो चाहिए। ठीक है तो मैं शुरुआत करता हूँ फिर। ओके हरिओम। राधा राधे राधे। DC आया तो क्या हो गया? मैं ही पढ़ रहा था। नहीं, आज मैं जल्दी उठ गया था ना सुबह। मैं भी तो 2 दिन से उठ रहा हूँ मैं सुबह। सेम। रहने दे, कॉपी पेस्ट करता हर चीज। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, ठीक है, involves making changes to the current state of the data model so that it's run more efficiently. Especially when your data model is optimized, it performs better. ठीक है. ऑब्वियसली हाँ हाँ। You might find out that your reports run well in test and development environment, but when deployed to production for further consumption, performance issues arises. Obvious from a report user perspective, poor performance is characterized by the report page that take longer to load and visualize, taking more time to update. This poor performance results in a negative user experience. ये तो साल मैनेजर की भाषा क्यों बोल रहा है? ठीक है. As a data analyst, you will spend approximately 90% of your time working with your data, and 9%, 9 time out of 10, poor performance is a direct result of a bad data model. ठीक है, bad data analysis expressions or the mix of two. ठीक है भैया. The process of designing a data model for performance can be tedious, tedious, टीटीएस। tedious, and it is often underestimated. However, if you address performance issues during development, you will have a robust Power BI data model that will return better reporting performance and a more positive user experience. Ultimately, you will also be able to maintain optimized performance. As your organization grows, the size of its data grows and its data model become more complex. By optimizing your data model earlier, you can migrate or mitigate and the negative impact that the growth might have on the performance of your data model. ठीक है, तो ये बकवास कर रहे हैं यहाँ तक कोई. पता नहीं, ठीक वही तो। है, ए स्मॉलर साइज डेटा, एक ही चीज 5 बार अलग अलग भाषा में क्यों बोल रही भाई? हाँ वही तो। A smaller size data model uses less resources, memories, and achieves faster data refresh, calculation, and rendering of visuals in reports. ठीक है. Therefore, the performance optimization process involves
minimizing the size of data model and making the most efficient use of data in the model, which includes, ठीक है, हम्म, ensuring that the correct data type are used, ठीक है, deleting unnecessary columns and row, avoid repeating values, okay, replacing numeric columns with measures, okay, reducing cardinality, okay, कहाँ पे? अच्छा, कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटीज, हाँ, हाँ। कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी, अरे अपने पढ़ा था ना। यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू। मतलब कितनी ज्यादा यूनिक वैल्यूज हैं तेरे पास, हाँ। तो वो रिड्यूस करनी पड़ेगी। एनालाइजिंग मॉडल मेटाडेटा, समराइजिंग डेटा वेयर पॉसिबल, डाल। कार्डिनलिटी मतलब हम्म। बेसिकली द रिपीटेड डेटा कितना है, ओ, उल्टा ये बोला कहना क्या चाह रहा मैं? है ना। नहीं। हाँ। अरे हाँ, क्योंकि अगर रिड्यू अरे यार, कैसी बातें कर रहा है, अभी पता चल रिड्यूसिंग जाएगा। कार्डिनलिटीज, हाँ। क्योंकि अगर कार्डिनलिटी रिमूव करने, विच मींस डुप्लीकेट्स और वो सब हटाने। No element in a set of other diagram or ये क्या है भाई? a number of elements in a set, और हाँ देख, काइंड ऑफ वही बोला, इन अ सेट और अदर ग्रुपिंग एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द अदर ग्रुपिंग, ओके। देखना व्हाट इज द एग्जाम देख ना, कार्डिनलिटी एग्जाम। इसमें तीन है, तो ये इसका थ्री एलिमेंट है, तो इसकी कार्डिनलिटी थ्री होगी, तो नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज कितनी है तेरे पास, समझ गया? जैसे हाँ लेकिन फॉर एग्जांपल एक सेट है तेरा, 2 4 6 7 10, सबका सेम एग्जांपल, तो इसकी कार्डिनलिटी 5 होगी, ठीक है। ठीक है, तो इसमें रिपीटेड वैल्यू को नहीं लेते हैं, देख, व्हाट इज ए कार्डिनलिटी इन ए सेट, जैसे अभी हाँ, कुछ तो यूनिक वैल्यू दे दो, सब सेम एग्जांपल दे रहे हैं। देख द कैट सेट साइज लिखा, कुछ तो लिखा हाँ, होगा। सेट साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितना एलिमेंट ओके होगा वो ओके। उसकी कार्डिनलिटी होगी, हम्म। ठीक है। तो मोस्टली यूनिक वैल्यू, सेट मतलब होता है यूनिक वैल्यू, ठीक है। यूनिक वैल्यू, हाँ। हाँ, तो मैं वही हम्म, बोला ना तेरे को, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज की कार्डिनलिटी होगी, तो जितना कम यूनिक वैल्यू होगी उतना बढ़िया रहेगा ना। अब वो नहीं समझ में आया, क्यों? क्योंकि हाँ क्यों? क्योंकि उतना कम वो, उसको अलग ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ना रन। मान ले बट कि अगर तेरे पास, सो हम्म अब इसका जरूरी नहीं है ना कि नंबर से लेना देना है, ठीक है। अपन कुछ भी चीज ले सकते हैं ना, मान फॉर एग्जांपल तेरे पास 1000 नाम है, ठीक है। हम्म अगर रिपीटेड नाम आ रहे हैं उसमें, ठीक है, तो तेरा डेटा हम्म। मॉडल अगर ग्रुप करेगा तो वो कम हो जाएगा ना रिपोर्ट में, क्योंकि उसमें अपन बाकी चीजें ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। वहीं अगर तेरे 1000 यूनिक वैल्यू हैं, तो 1000 की रिपोर्ट को लोड बट करने में टाइम लगेगा ना। मेरे को एक बात बता जीपी, हाँ, कार्डिनलिटी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं करेक्ट है। है ना। हाँ, तो उसको रिड्यूस करने कोई सेंस तो बनता नहीं, अब जो डेटा है वो डेटा है। हाँ, करेक्ट। तो हाँ, डेटा है, चल डेटा रिड्यूसिंग है, ठीक है, मान ले तेरी बात। तो रिड्यूसिंग कार्डिनलिटीज रिड्यूसिंग कार्डिनलिटी इज, तो फिर और क्या हो सकता है कारण? कुछ और होगा, क्या होता है आगे एक्सप्लेन करे, क्योंकि उसमें से वो है भी, इसके अंदर एक चैप्टर भी है गेस। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, अभी देखना दे, कुछ आएगा शायद, छोटे टाइम वाला एक है, रिड्यूस कार्डिनलिटी, देखिए रहा, अभी पहले ही तीसरा ही पढ़ेंगे है। अब तो। नहीं नहीं सुनना। अब ओए ओए जो भी, अब अरे और ओ भाई, ओ भाई मेरे सामने पहले उसको फालतू, तो खत्म ये कर। अन्ना रस्कला, ये नो। ओए पढ़ा। उसको पीछे कर ले भाई तू। Cardinality is a term that is used to describe the uniqueness of values in a column. The correct बात है थी मैंने सही। हाँ बात तो ये है। Cardinality is also used in the context of relationship between two tables. Okay, where it अच्छा। describes the direction of the relationship. Okay, अच्छा, जो वो एरो सा नहीं बना रहता था हाँ वही, वो उसका भी मतलब वो भी तो वो इसे उसके सेंस में बोल रहा होगा कि वो कम कर दो बस। है, वो तो कैसे करोगे कम? वो भी फिर मल्टीपल रिलेशनशिप रखना मतलब। मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं रखना, मतलब, हाँ तो रिड्यूस कर दो। अच्छा जी, अभी रुक जा। देखना, कंट्री इज आल्सो यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। करेक्ट ना, वो तो था। Previously when we used Power Query Editor to analyze the metadata, the column and distribution option in the View tab displays statistics of how many distinct and unique items were in each column in the data. Distinct value count the total number of different, अच्छा ठीक है, हाँ। तो जैसे अपन यहाँ पे इसमें व्यू में जाके, तू अगर इस पे लिखता है ना हाँ कॉलम हाँ। डिस्क्रिप्शन, हम्म ठीक है,
तो ये जो तेरे कॉलम के डेटा है ना, इसके अंदर ये बता देता है कितने डिस्टिंक्ट है, कितने यूनिक है, अच्छा। ऐसा अलग से। ओके ओ, और ये तगड़ा चीज है। हाँ, हाँ। ठीक है। तो हम्म। वही है, ये डिस्टिंक्ट और यूनिक में क्या डिफरेंस है बताओ। ओके, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू फाउंड इन अ गिवन कॉलम, ठीक है, हम्म इट्स योर डिस्टिंक्ट। हम्म And the total number of values that only appear once in a given column. Eh? Once in a given column. बताओ क्या The डिफरेंस। different value found in a given हम्म total number of different values and the total number of values. ओके सो ऐसा तो नहीं है जैसे मान ले तेरे पास 6 कॉलम है हम्म और लेट्स से दो दो वैल्यूज सेम आ रही हैं। लेट्स हम्म से एक कॉलम में, दो कॉलम में 1 है, दो कॉलम में 2 है और दो कॉलम में 3 है। हम्म तो इसकी जो डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी हम्म वो होगी 1 2 3। डिस्टिंक्ट वैल्यू होगी 1 2 3, ठीक है। है ना, क्योंकि हम्म वो आ रही है। हम्म और लेकिन तो एनीवेज वैल्यूज तो सेम ही आने वाली है ना। नहीं, जो ओके, सिर्फ अच्छा एक अच्छा, बार रुक आ जा और रही रुक है। जा, हाँ हाँ। और लेट्स से अगर तेरी यूनिक वैल्यू होगी, लेट्स से वो जो चार तेरी 6 कॉलम है, हम्म एक में 1 2 3 3 4 4 है, हम्म तो 1 2 तेरी यूनिक हो जाएगी। हाँ, थ्री और फोर तेरी हाँ होगी डिस्टिंक्ट वैल्यू। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। डिस्टिंक्ट। हाँ हाँ हाँ। नॉनसेंस। अच्छा यूनिक मतलब, ओके ओके गॉट और इट। सुन, डिस्टिंक्ट में वन हाँ, टू भी आएंगे। डिस्टिंक्ट में 1 2 भी आता है, अच्छा ठीक है। हाँ देख, तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यू फाउंड इन, तो वन टू भी हाँ तो करेक्ट, डिफरेंट ही है। तो डिफरेंट ही है ना, करेक्ट करेक्ट। ऑलवेज डिस्टिंक्ट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू यूनिक इज अ यूनिक। सबसेट ऑफ डिस्टिंक्ट बोलेंगे, ठीक है, अब समझ हाँ, में आ गया मेरे को। हाँ समझ गया। ठीक है, हाँ ए हाँ कॉलम हाँ। दैट हैज अ लॉट ऑफ रिपीटेड वैल्यूज इन इट्स रेंज, डिस्टिंक्ट काउंट इज हम्म लो। ठीक है, हम्म विल हैव हम्म ए लोअर लेवल ऑफ कार्डिनैलिटी, ऑब्वियस बात है। ठीक है, हम्म, जिसका डिस्टिंक्ट काउंट लो रहेगा, ठीक है, हाँ मतलब उसकी लो कार्डिनैलिटी होगी, कि मतलब कि हाँ, बहुत कम डिस्टिंक्ट है टोटल काउंट में ना, सब करेक्ट रिपीटेड हो करेक्ट रही हैं। ठीक है, करेक्ट। कन्वर्सेशनली ए कॉलम दैट हैज अ लॉट ऑफ यूनिक वैल्यूज इन ए रेंज, यूनिक काउंट इज हाई, देन द हाई कार्डिनैलिटी होगा। ठीक है, हम्म लोअर कार्डिनैलिटी लीड to more optimized performance. So you हम्म might need to reduce the number of high cardinality columns in your data set. अब जो तू ये कह रहा हम्म था ना कि लो कार्डिनैलिटी लो कैसे करेगी रिड्यूस, जो तू कह रहे है ना हम्म कि रिपीटेड हम्म वैल्यू कैसे तेरी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करेगी, ये तेरा डाउट है ना, हम्म है ना। तो अब आगे पढ़, फोन आ गया भाई तेरा। एक सेकंड रुकना यार ना। हाँ, चलो देखते हैं मैं इतने। Lower cardinality leads to more optimized performance, so you might need to reduce the number of high cardinality columns in your data set. ओके, जिसके अंदर ज्यादा यूनिक वैल्यू होगा उसका निकालना पड़ेगा। एक नोट लिख लेता हूँ, फिर बाद में समझेंगे काहे निकालना पड़ेगा। ठीक है, लोअर कार्डिनैलिटी leads more optimized परफॉर्मेंस। हेलो। हाँ, हाँ ब्रो। ठीक है। हाँ तो हाँ हाँ, तो बोल फिर। ठीक है, अब देखो पढ़ते हम्म हैं। ठीक है, रिड्यूस हम्म, रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी, ठीक है, ये कैसे करेगा। ठीक ठीक है, है। when you import multiple table, it is possible हम्म that you will do some analysis by using data from all हम्म those table. The relationship between these table are necessary to accurately calculate results and display the correct information in your report. ठीक है, हम्म Power BI desktop helps making creating those relationships easier. In fact, in most cases you won't have to do anything, the auto हम्म detection feature do it for you. ठीक है, however you might occasionally have to create a relationship or need to make changes to a relationship. Regardless, हम्म it's important to understand relationship in Power BI and how to create and edit them. हम्म When you create or ये तो पहले पढ़ा चुका ना, फिर क्यों पढ़ा रहा। When you create or edit a relationship, you can configure additional options by default.
Power BI automatically configure additional option based on its best guesses, which can be different for each relationship based on the data in the column. The relationship can be for different cardinality. Cardinality is the directionship of the relationship, and each model relationship must be defined with a cardinality type. The cardinality options in Power BI are one to many. The relationship is the most common default type. It means that the column in one table can have more than one instance of values and the other related tables, often known as the lookup Often. table. Very good. Often. ओए, मेरे साथ हम्म। फालतू नहीं। लुकअप टेबल क्या होती है? मतलब जिसके अंदर से डेटा खोज रहे हैं। यस, मतलब उसमें डिस्टिंक्ट वो नहीं होता, सर। टेक्स्ट नहीं होता, उसके अंदर एक लुकअप वैल्यू होती है जो किसी दूसरी अच्छा। टेबल से वैल्यू उठा रहा है, खुद कुछ वैल्यू उनमें इंपोर्टेंट नहीं हुआ। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो अगर मान ले कोई टेबल है ना, जैसे मान ले मैं हम्म। सीआरएम डेटाबेस का देता हूँ। जैसे अगर कोई भी वो है, कोई स्टेट टेक्स्ट है या कोई भी न्यूमेरिक है, ठीक है, तो उसका हम्म। उसका टेक्स्ट या न्यूमेरिक बन के आएगा जिसमें तू टाइप करेगा, ठीक है। लुकअप में वो हम्म। ऐसे ड्रॉप डाउन आता है जिसपे तू क्लिक करता है ना, फिर पूरी लिस्ट हम्म। क्रिएट होती है, फिर पूरी लिस्ट आती है, उसमें से तू कुछ सेलेक्ट करता है, ठीक है। हम्म। तो वो होता है लुकअप टेबल, मतलब किसी और टेबल से तू डेटा आ रहा है, ते तू खुद नहीं अपने में डाल रहा। हम्म। हैज ओनली वन इंस्टेंस ऑफ ए वैल्यूज, ठीक है, तो इसलिए लुकअप कहते हैं मैनी टू वन या वन टू मैनी, एक ही होता है ना ये तो, बहुत हाँ, सारे। मैंने टू वन वन। हाँ, एक ही होगा। हाँ मतलब क्यों नहीं, इसमें अलग है। यानी, वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा हाँ बस। मैं वही तो कह रहा हूँ, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही हाँ, है। One to वही। one is the distance if the column in one table has only one instance of a particular value and the other related table has only one instance, मतलब वही हो गया एक से एक। One to many in हाँ, a relationship column that one table has only one instance for a particular value and other related table can have more than one instance। वही ना, अदर जो टेबल है उसमें एक से ज्यादा हो सकता है, पर खुद की टेबल में तो एक ही रहेगा, ठीक है। हाँ। ऐसे इसमें था ठीक है। मैनी टू मैनी इज विद composite model you can establish a many to many relationship between table which removes requirement of a unique values in tables. It also removes previous workaround such as introducing a new table only to establish relationship। हम्म। ये बकवास चीज, इसकी बात ही नहीं करनी, ठीक है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट यू विल बी क्रिएटिंग और एडिटिंग रिलेशनशिप इन योर मॉडल, सो हम्म। when you are building new relationship in model, regardless of what cardinality you have chosen, always ensure that both of the column that you are using to participate in a relationship are shared same data type. Your model will never work if you are trying to build a relationship between two tables where one table has a text type and another column has integer data type। Okay, हम्म। ठीक है। If the following हम्म। example in the power product ID, the field has the data type whole number, the चुप, बकवास, वही एक का तो डेटा टाइप होल नंबर है, दूसरे का टेक्स्ट है। एक का इंटीजर, अच्छा हाँ। एक का टेक्स्ट है और एक का होल नंबर, मतलब वही है नंबर, ठीक है। द कॉलम विद द डेटा टाइप इंटीजर परफॉर्म्स बेटर देन द कॉलम विद द डेटा टाइप टेक्स्ट, क्योंकि ये होल नंबर और हम्म। इंटीजर ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है ना, पर टेक्स्ट और इंटीजर बहुत डिफरेंस हो जाता है ना। हम्म। ओके, छोटा सा ये तो फटाफट कर देते हैं। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग कार्डिनैलिटी लेवल, ठीक है। पावर बीआई ऑफर्स डिफरेंट टेक्निक दैट, ये इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा है, पर इसने सब कुछ समझा दिया, पर ये नहीं समझा पा रहा है। पावर बीआई, वो लेक हाँ बोल। बोल बोल, नहीं, वो सही कह रहा है कि मैं एक्चुअल हम्म, कि वो वैल्यूज वाली चीज बोलना, वो इधर उधर की बकवास लेके आ गया बीच में। ओ नहीं तो, वही। तब से हम बैठे हैं, हमारे को आंसर नहीं मिल पा रहा। पावर बीआई डेस्कटॉप ऑफर्स डिफरेंट टेक्निक दैट यू कैन यूज टू हेल्प रिड्यूस द डेटा दैट इज लोडेड इनटू डेटा मॉडल्स, ठीक है। Such as summarization. Reducing the data that is loaded in your table will improve the relationship cardinality of the report. देख कहा था मानता ही नहीं है, ठीक है। For this reason, it is important that you strive to minimize the data that will be loaded into your model. The case is especially true for large models or models that are anticipated will grow to become large over time, ठीक है। जब एक सेकंड रुकना। हाँ, Like, the data offer different techniques that you can use to help reduce the data.
नहीं समझ चलो में आया। ठीक है ना, मैं बस एक बार फिर से पढ़ रहा था उसको, मिस हो गया था। जोर से पढ़ना फिर। अरे नहीं नहीं तो, अच्छा हम्म, चलिए इधर मैं थोड़ा सा बचा, मैं एक सेकंड रुक जा बस, रिड्यूसिंग द, मैं वैसे भी समझने के लिए मैं खुद धीरे ही पढ़ूंगा। नहीं धीरे पढ़ ले, Reduce धीरे ही पढ़ the लेंगे, मेरे को productivity भी समझ में model आ जाएगा will ना, दोबारा quickly सुनने से improve. दोबारा समझ रहा है, इम्प्रूव अच्छा होता है। चलता ठीक है, ओके. So Power BI Desktop offers different techniques that हम्म you can use to help reduce the data हम्म that is loaded into data model, हम्म such as summarization. हम्म Reducing the data that is loaded into your model हम्म will improve the relationship cardinality of the report. Okay. हम्म For this reason, it is important that you strive to minimize the data that will be loaded into your models. हम्म अरे कितनी बार सेम चीज बोलेगा यार. This case is especially true for large models or model that you anticipate will grow to become large over time. हम्म। ठीक है. अब मैं समझ, मैं बता रहा हूँ ये क्या कहना चाहता हम्म है। ठीक है देख, हम्म ये एक कंपैरिजन पे बात कर रहा है। ठीक है, कि मतलब हम्म मेरे पास दो डेटा सेट है। ठीक है, हम्म एक में हम्म है 1000 रोज, एक में भी है 1000 रोज। ठीक है, हाँ तो अगर मैं तेरे को 1000 रोज दूं, ठीक है, चाहे इसमें 5 कॉलम हम्म इसमें भी है, 5 कॉलम इसमें भी है। ठीक है, ठीक है। अब ठीक है. मैं बोलूँ कि कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा, तो तू क्या जवाब देगा? भाई तू बोलेगा सेम ही कर. सेम ही करेगा, हाँ करेक्ट है। ठीक है, अब हाँ. यहाँ पे कार्डिनलिटी का रोल आ जाता है। ठीक है, अब एक हुँ, है जिसके अंदर बहुत सारी यूनिक वैल्यू, ऑलमोस्ट सारी यूनिक वैल्यू, 1000 के 1000। ठीक है, हुँ, अब एक के अंदर रिपीटेड वैल्यू बहुत सारी है। ठीक है, यूनिक वैल्यू बहुत हुँ, कम है, मान ले 100 ही यूनिक है। ठीक है, हुँ, तो इसकी कार्डिनलिटी होगी 100, इसकी कार्डिनलिटी होगी 1000। ठीक है, हुँ, तब ये कहना चाह रहा है कि लोअर कार्डिनलिटी लीड्स फॉर मोर ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस, क्योंकि हाँ, इसमें अपन समराइज कर लेंगे तो वो 1000 को अपन 100 में ही लिया है। ठीक है, करेक्ट. और यहाँ पे 1000 के 1000 में रह गए। तो वो चीज जब तू रिपीट कर, जब रिपोर्ट क्रिएट करेगा तो जो तू प्रोसेस करेगा तो एक साथ 1000 रिकॉर्ड्स करेगा, यहाँ पे सिर्फ 100 ही कर रहा है। ठीक है, हुँ, तो ये वो कहना चाह रहा था कि लोअर कार्डिनलिटी लीड्स टू मोर परफॉर्मेंस। अब समझ में आ गया? वो तो है. वो अपन तब एक सिर्फ एक ही एग्जांपल ले रहे थे, ठीक है, इसको किसी दूसरे एग्जांपल के साथ कंपेयर करना है। ठीक है। हाँ, बट ये भी बस तू समझ, हाँ, वो है लेकिन फिर भी बोल रहा है, लेकिन वो हम्म। इम्प्लीमेंट कैसे करना है, लाइक वो देखते हैं ना, तब पता चलेगा एक्चुअली इसका. तो ये इम्प्लीमेंट, बस बोल र हाँ मैं बता रहा हाँ, हूँ देख, इम्प्लीमेंट मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। मान ले तूने देखा तेरे पास यूनिक वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, तो तू हुँ, तेरे डेटा मॉडल को चेंज कर, तो जो तेरी टेबल है ना, उसमें है ना, हुँ, तू ट्राई कर कि तू समराइज्ड वैल्यू ला रहा है। मान ले फॉर एग्जांपल कि तू सम में ही ला रहा है। मान ले मेरा जयपाल जयपाल के ट्रांजेक्शन बहुत बार हुए हैं। ठीक है, तेरे ट्रांजेक्शन बहुत बार हुँ, हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे है ना सारे सम करके मेरा एक में ला दूंगा। समझ रहा है? मैं ग्रुप बाय जो हुँ, अपन करते हैं ना, जैसे मान ले, तो उसमें क्या होगा, मेरा सारा का एक ही रो में मेरा सारी वैल्यू आ रही है। ठीक है, मान ले मैंने जयपाल 5 रुपए, जयपाल 10 रुपए, तो मेरा अब नए मॉडल में समराइज करके आएगा जयपाल और टोटल 10,000 रुपए खर्च। अच्छा. ठीक है, अब ये एक पर्टिकुलर, ये अपन हर बार नहीं कर सकते, ये तेरे देख रिक्वायरमेंट पे होता है। फॉर एग्जांपल तेरे को चाहिए कि जयपाल ने कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, वो तेरे को विजुअलाइजेशन में दिखाना है। ठीक है, अब हुँ, तू क्या कर रहा है, तू मेरे पूरा मंथ का सारा टेबल लोड कर रहा है। ठीक है, फिर हुँ, तू उसको रिपोर्ट में कर रहा है और वहां पे तू सम कर दे रहा है। ठीक है, अब यहीं हाँ, पे तू पहले से ही सम करके वो सिर्फ एक रो ला रहा है और फिर तू उसको रिपोर्ट में दिखा रहा है। ठीक है, तो समझा, उन समझा. दोनों पे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अब देख डेटा तो चेंज नहीं हो सकता, पर सेम डेटा को तू कैसे यूज करेगा तेरा मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए, वो बोलना चाहता। हुँ, समझे? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. हाँ. अरे समझे कि नहीं? अरे बूझ गए बाबू, बूझे. ओके, चलो अब ये तो कंटिन्यू कर ही लेते हैं पूरा ना, अब खो कर हाँ, ही कर लिया। दिया, हो ही गया खत्म. हाँ, हाँ. बस थोड़ा सा ही बचा है। कहाँ से कहाँ कूद कर पर आए. सही है ना, समझ में तो आया। नहीं तो फिर वही तो. बेचैनी रहती साला, गुदी कार्डिनलिटी गुदी से फिर कार्डिनलिटी. रात को नींद आती मेरे नहीं साला कैसे डेटा को बोल रहा, आधे डेटा लाओ चिल मारो. को। तो ये कहना, अरे. ये चाहता है कि हम्म, with low cardinality you should use summarized data। हाँ. पढ़. अरे रुक जा, मैं तो इम्पोर्टेंट पार्ट मार्क कर लूँ, कहीं यूपीएससी एग्जाम में ना जाए। ओके. ठीक है, ठीक है।
Perhaps the most effective technique to reduce a model, अब यह बता रहा है, ठीक है, Hmm. a model size is to use summary table and from the data source where a detailed table might contain every transaction. A summary table would contain one record a day, per week or a month, ठीक है. It might be an average of all transaction per day for instance, ठीक है, वो तेरी रिक्वायरमेंट के Hmm. ऊपर है कि किसी को एवरेज Correct. चाहिए क्या चाहिए, ठीक है. Hmm. For example, a source, no, sorry, source sales fact table stores one row for each order line. Hmm. Significantly, data reduce could be achieved by summarizing all sales metrics if you group by date, customer, and product and individual transaction details if is needed or not. ठीक है. Considering that the ये तो भाई देन दैट बहुत घुमा रहा है, इसकी मैं ऐसे कर दूंगा. कंसिडरिंग देन दैट an even more significant data reach will be achieved by grouping by date at month level. It could achieve a possible 99% reduction in data model size, but reporting a day level or an individual order level is no longer possible, ठीक है. Deciding Hmm. to summarizing fact type data will always involve a tear off with the detail of your data. A disadvantage is that you may lose the ability to drill into data because the detail no longer exists. This trade-off could be mitigated by using a mixed model design. ठीक है, तो ये इतने में यही कहना चाहता है कि ठीक है समराइज तो कर लेंगे पर उससे आप अपने तो Date. डेटा की डेप्थ हाँ. को आप लॉस मिस कर वो जाओगे, मिस. हाँ, है ना. लॉस कर तो देंगे. हाँ. मेनली अपने एक तो मिक्स्ड रखो, जितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करो, ये कहना ये चाहता है, हाँ. बस ये इतना कह नहीं पा रहा है ये कि भैया जो Hmm. तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वैसे करो. तो मोस्टली पता Yes. है क्या करते हैं, डेटा को कहीं और स्टोर करते हैं, ठीक है. और जो अपन Hmm. पावर बीआई या टैबल्यू है ना, उसमें वो व्यू क्रिएट करके लाता है, जो मैं तेरे को बताया था ना. वो हाँ, व्यू हाँ, क्रिएट क्या हाँ. होता है, वो स्पेशली एक रिक्वायरमेंट के लिए होता है, ठीक है. अब तेरी Hmm. रिक्वायरमेंट क्या है, सेल्स का दिखाना है, तो तू खाली उस सेल्स के लिए वो लेके आएगा. अब उसमें तू समराइज्ड करके ही लाता है क्योंकि तेरी रिक्वायरमेंट वही है, ठीक है. ठीक है. Correct. तो ये फायदा हो जाता है, इसलिए अपन लोग मल्टीपल यूज करते हैं, नहीं तो पावर बीआई का गेम बजा देगा तेरा अगर तूने सारा डेटा इंपोर्ट कर दिया पावर बीआई में तो. Hmm. ठीक है. In Power BI desktop, a mixed model design produce a composite model. Essentially, it allows you to determine a storage mode for each table. Therefore, each table have its own storage mode properties as an import और डायरेक्ट क्वेरी, ठीक है. तो देखिए Hmm. स्टोरेज मोड की बात अपन कर रहे थे, ठीक है. तो Correct, correct. इंपोर्ट मतलब कि तू इंपोर्ट कर रहा है, डायरेक्ट क्वेरी मतलब तू शायद इसमें तो क्वेरी लिखता है, ठीक है. और Hmm. इंपोर्ट में मतलब तू प्रॉपर एक पूरा टेबल या तेरा व्यू इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है. तो अपन ये चेक Hmm. करते हैं पहले क्या होता है सोना पानी. ये एक बार मैं तेरे को दिखा देता हूँ, ठीक है. इंसर्ट में गए, अच्छा इंसर्ट तो कहाँ गए, होम में जाओ. होम में गए, डेटा, गेट डेटा, एसक्यूएल सर्वर. भैया घड़ी की आवाज आने लगी फिर से, जब आप शांत नहीं हो. देख, Mhm. अब जैसे ये रहे, देख इंपोर्ट और एक क्वेरी डायरेक्ट, ठीक है. Hmm. सेलेक्ट द मोड ऑफ स्टोरेज फॉर न्यू टेबल्स, ठीक है. इंपोर्ट मतलब क्या होता है, Import पता नहीं यार. डायरेक्ट. Import नहीं डिफरेंस क्या है? दोनों में वो खुल रहा है तेरा तो स्टेटमेंट वाला चीज. नहीं, वो तो है, वो अलग चीज होगी फिर, मेरे को लगता है इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी. इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी डेटा कनेक्टिविटी मॉडल है, ठीक है. ठीक है, एक हम्म. बार थोड़ा सर्च करते हैं, मेरे को क्या लगता है. इंपोर्ट मतलब क्या होगा कि सारा डाटा ले लेगा, ठीक है. और हम्म. ये डायरेक्ट क्वेरी में शायद सिर्फ क्वेरी रन करेगा, मतलब जो तेरी अच्छा. रिक्वायरमेंट है, और उस क्वेरी वाला ही डाटा बार बार लाएगा. और इसमें अच्छा. इंपोर्ट में मतलब सारा कर लेगा. एक बार देखते हैं, मेरे को कुछ आइडिया तो नहीं है पर मेरे को नाम से ऐसा हम्म. लग रहा है, ठीक है. IMPORT इन पावर, पावर बीआई याद भी तो नहीं रहता इतनी चीजें. डिफरेंस है क्योंकि इंपोर्ट तो अलग अलग तरीके से हो जाएगा ना शायद. सेलेक्ट फाइल इंपोर्ट बोलते हैं कुछ. Power BI connect with the underlying data source and download entire data from या the डेटा data फ्रॉम source, डेटा सोर्स. ठीक है.
मतलब वो पूरा हम्म, पूरा एंटायर करेक्ट डेटा करेक्ट। सोर्स ही ले आएगा, ठीक है। हाँ, और ये क्या था, डायरेक्ट क्वेरी। डायरेक्ट क्वेरी। हम्म। आगे नीचे लेट्स यू बिल्ड विजुअल। विजुअलाइजेशन। हाँ, इसमें तो नहीं। व्हाट हम्म इज अ डायरेक्ट क्वेरी? डायरेक्ट क्वेरी मींस पावर इज डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द डेटा सोर्स, ठीक है। एनी टाइम यू सी विजुअलाइजेशन रिपोर्ट, द डेटा कम्स स्ट्रेट फ्रॉम क्वेरी सेंड टू योर डेटा सोर्स। अच्छा, वही मैं कह रहा वो हूँ, यहाँ वही जो जो सेम। अपन को उठाना है पर्टिकुलर फील्ड वो डाल हाँ, के फिर वो उठाएगा। उसमें तो इंपोर्ट में तो सब कुछ ले आएगा, ठीक है। कोई हाँ मतलब ही हाँ। नहीं है तेरे को कुछ करने का। और इसके हम्म अंदर डायरेक्ट क्वेरी में क्या होता है कि जो तूने क्वेरी लिखी है ना, वो डेटा हम्म सोर्स से ही लाएगा, ठीक है, पर सब कुछ इंपोर्ट नहीं करेगा। पर जो तूने लिखा है हम्म, वही चीज लाएगा। हाँ समझा ब्रो। हाउ डज पावर बी कनेक्ट टू डेटा सोर्स? टू डू दिस पावर बी, अच्छा ये तो अलग चीज है। ये समझ गया या मैं, और मेरे को भी समझ हाँ हाँ समझा मैं कंफ्यूजन समझा। नहीं है ना? बिल्कुल ही। नहीं नहीं। मेरे हम्म। को लग रहा थोड़ा, एक बार और देखे थोड़ा। देखिए बेनिफिट, हाँ वही। हाँ बोल। नहीं नहीं, बेनिफिट की जगह अपन ऊपर देखे थे। When you connect to databases, it's always possible to import a copy of data into Firewall. For some data source, an alternative approach is available. Connecting directly to data source using, हाँ ठीक है। वही होता है कि तू पूरा डेटा सोर्स नहीं लाना चाहता है, तो तू डायरेक्ट हम्म क्वेरी के थ्रू मार ले। फॉर एग्जांपल, कुछ कुछ होता है ना, कुछ रिक्वायरमेंट होती है किसी कंपनी की कि तू पूरा डाटा हम्म पावर बीआई को क्यों दे, है ना, डरते तो हम्म है ना लोग। हम्म तो शायद उसके हम्म। लिए वो चाहते हो कि भैया जो रिक्वायरमेंट है वो यूज करो, उसके अलावा सारा डेटा नहीं मत करो। और आइडियली बेस्ट प्रैक्टिस भी यही होगी ना, देखा जाए नहीं, तो बेस्ट डायरेक्ट क्वेरी। प्रैक्टिस में से कुछ नहीं है दोनों में से, ठीक है। अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस है इंपोर्ट, ठीक है। और इंपोर्ट के अच्छा अंदर क्या होता है कि एक तो बार बार क्वेरी रननी होगी। ये तो बहुत बेकार चीज है, डायरेक्ट क्वेरी तो बहुत ही गंदी चीज अच्छा है। अब मान ले अच्छा। तेरे को कुछ भी चीज हो गई, तू सर्वर जाएगा वापस मांगने, फिर तू सर्वर हाँ वापस हाँ। आएगा, ठीक है। कनेक्शन होगा इसमें तो फिर भी ठीक है, एक बार तेरे में आ गया ना, तो तू सर्वर हम्म। चाहे एस्टेस कराया अपनी, तेरे को कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे डाउन हो, अच्छा। चाहे तुम्हारा कनेक्शन क्या है, पावर बीआई का खुद पे तो सब कुछ है ना, कंट्रोल। तो वो अपना हम्म उसको दिक्कत नहीं आएगी वो रिपोर्ट बनने में। यहाँ पे क्या होगा कि चल दो तीन पेज तो रिपोर्ट बनेगी, चौथे में एरर आ गया तो भैया गया पानी भैंस पानी में, ठीक है। फिर हम्म बाद में तू आज रिफ्रेश कर रहा है, चार बार पांचवी बार रिफ्रेश करते ही वो डेटा क्वेरी रन कर रहा है, वहां से तेरा सर्वर डाउन है कुछ भी है, तो तू फिर हम्म गया तेरा रिपोर्ट। इसमें क्या है कि एक बार आ गया डेटा तो चाहे वहां पे तेरा सर्वर डाउन हो कुछ हो, तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अपन हम्म पूरा डेटा इंपोर्ट नहीं करते, अपन ओनली रिक्वायर्ड डेटा इंपोर्ट करते हैं। हम्म। तो इसमें ऐसा कोई है समझा। कि तू वो इंपोर्ट दबा दे और सारा आ जाएगा। उसमें भी तेरे को आगे आके ऑप्शन आएगा, देख द सेलेक्टेड टेबल्स एंड कॉलम आर इंपोर्टेड इन पावर बीआई, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि तूने एक हम्म। बार इंपोर्ट कर रहा है तो सब कुछ आ जाएगा, वो भी तेरे चॉइस हाँ वो होगा अपन कि तेरे को क्या क्या इंपोर्ट करेक्ट करना है, करेक्ट करेक्ट वो ठीक चूज करते हैं ना अपन है। उसमें जाके भी हाँ, कौन कौन से टेबल्स। करेक्ट। करेक्ट, हाँ। तो as you create or interact with visualization, Power BI use the import data to see underlying data changes since it's initially imported or most recently refreshed. You हम्म। must refresh the data when which imports the full डेटा सेट अगेन। हाँ, तो जो जैसा कि- रिक्वायर्ड डेटा सेट फुल वैसा नहीं करेगा सब कुछ, पर जो तूने हम्म। तूने कर रखा है ना उसी को वापस पूरे को डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। करेक्ट। नो डेटा इज इम्पोर्टेड और copied in Power BI desktop. For relational sources, the selected tables and columns appear in the field list. For multi-dimensional source like SAP, business, warehouse, ये क्या होता है? वही तेरा डेटा, वेयर हाउस डेटा उसको रखने के लिए। ये तुम काम और यूज ऐसे किया तूने कभी? नहीं नहीं। ओह, और मतलब जनरली वेयर हाउस अपन इसको उस सेंस में बोलते हैं जहाँ हाँ, पे करेक्ट बल्क है। डेटा पटकना उठा के मैं स्टोर करना हो। सैप देख के सोचा तेरे को पता होगा। ना ना भाई। Dimensions and measure of the selected cubes appears in the field. You can create or हम्म interact with the visualization, the per underlying sources. हाँ, तो इसमें शायद वो ही है ना, पूरे डेटा इंपोर्ट नहीं करता, बस जो तो रिलेशन डेटाबेस से तेरा कनेक्शन होता है, तो जैसे क्वेरी रन हम्म। करेगा वो चीज वो इंपोर्ट कर लेगा, और वो फील्ड के अंदर जो नहीं होता, जो फील्ड पावर क्वेरी का, हाँ हाँ यहाँ हाँ। ये वाला फील्ड यहाँ पे शायद वो दिखा देगा वो चीजें, हम्म। समझा ब्रो। ऐसा कुछ। अच्छा, ये तो बंद करना ही भूल गया।
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो करते हैं बंद इसको, हो गया बहुत। ठीक है, कहाँ थे ठीक है अपन? हम यहाँ पे हाँ, मिक्स। लास्ट कॉलम लास्ट पैराग्राफ पे। For each table can be stored in अच्छा, ये अलग अलग, ठीक है। An हम्म efficient technique to reduce the model size is to set the storage mode property for large fact tables type to direct query। हम्म ये तो भाई ये तो उल्टा बोल रहा है। To reduce the model size is to set the query for the large to direct, ठीक है। The design approach will work well in a conjunction with the techniques that are used to summarize your data. For example, the summarize sales data would be used to achieve high performance summary reporting. A drill through page could be created to display granular scales for specific or narrow filter context, displaying all in context sales order. The drill through page could include visualization based on a direct query table to retrieve the sales order data, sales order details. अच्छा, हम्म, हम्म। बट वही उसका डिसअडवांटेज तो बोल रहे ना कि सर्वर जाएगा तो हम्म, लगेंगे। लेट्स हम्म, कोई ना कोई ग्लिच आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हम्म। होगा। तो ये अदरवाइज तो ऑप्टिमाइज तो ज्यादा वही है ना, देखा जाए तो। देख, नहीं वो तो है, मैं समझ गया, हम्म, वही है कि मेन चीज तो तू इंपोर्ट कर ले जो तू समराइज्ड है ना, मेरे को लगता है ये कह रहा है हाँ हाँ। समराइज्ड डेटा तो इंपोर्ट कर ले। और तेरे को हम्म अगर कोई ड्रिल डाउन, जो ये तू ये नहीं कह रहा है कि ये ड्रिल थ्रू पेज मतलब जिसमें हाँ। सारा डेटा आ रहा है, उसमें तू एक हम्म क्वेरी डायरेक्ट कर ले। ठीक है, क्योंकि उसका यूज कम हो गया, पहली बात तो इसमें तो डेटा इंपोर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मान हम्म ले एक तो आदमी तभी बहुत कम यूज करेगा ना ड्रिल थ्रू को, कि पूरा ही कुछ मान ले किसी को, अच्छा देखा रहे ये सेल्स क्यों कम है, इसकी देखे क्या कारण है, तो उसको सारा देख रहे हैं। तो वो ड्रिल थ्रू क्वेरी से डायरेक्ट क्वेरी से डेटा सारा इंपोर्ट करेगा। तो उसमें क्या होगा, अच्छा। स्टोरेज का इफेक्ट नहीं आएगा ना। हाँ, करेक्ट। वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही है, और तब अगर कनेक्शन सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को लग रहा है ऐसा कहना चाहता नहीं है। एक बार दोबारा पढ़ूं ये वाली लाइन, ये थोड़ा हाँ, तीन पढ़ ना, चार दोबारा लाइन। पढ़। The हाँ, दोबारा design पढ़। approach can work well in conjunction with techniques that are used to summarize your data। ठीक हम्म है, for example, the summarized sales data could be used to achieve high performance summary reporting। हाँ, summarize sales से तो तूने तेरा अचीव कर लिया हाई परफॉर्मेंस समरी रिपोर्टिंग। ठीक है, ये हम्म तूने अचीव कर ली। A deal A drill-through page could be created to display granular sales for specific और narrow filter context। ठीक है, तो इसमें ये हम्म कह रहा है कि अगर मान लो तेरे को और नैरो करना है कुछ भी चीज, ठीक है, सारा डेटा नहीं दिखाना, पर तेरे को मान लो पूरा मंथ वाइज दिखाना है या तेरे को वीक वाइज दिखाना है, थोड़ा एक लेवल नीचे, ठीक है, जो समराइज था तेरा हम्म उससे एक लेवल और नीचे या दो लेवल और नीचे तक तेरे को दिखाना है, मान ले। ठीक है, तो तू एक हम्म। अलग पेज कर सकता है ड्रिल थ्रू पेज, जिसके अंदर तू ग्रैनुअल ग्रैनुअल मतलब वो डिटेल है ना, डिटेल होता है ना, हाँ, वो डिटेल ऑफ करेक्ट। सेल्स के बारे में जो तू नैरो डाउन कर पा रहा हो। ठीक है, डिस्प्लेइंग ऑल इन कॉन्टेक्स्ट सेल्स ऑर्डर मतलब सेल्स ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में तू दिखा सकता है। ठीक है, द हम्म ड्रिल थ्रू पेज कुड इंक्लूड विजुअल्स बेस्ड ऑन ए डायरेक्ट क्वेरी टेबल। ठीक है, अब ये क्या है कि एक तो चीज है जो तो कम यूज होगी, ठीक है, दूसरा है हम्म इसको अपन डायरेक्ट क्वेरी से यूज कर लें, क्योंकि इससे क्या है, पहली बात तो अपन पूरा डेटा नहीं डाल पा रहे। ठीक है, इंपोर्ट हम्म। इंपोर्ट तो बहुत गंदा होगा कि अगर तू पूरा डेटा इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तब तो तू इंपोर्ट करेक्ट। करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब मान ले हम्म तेरे को बहुत सारा डेटा जरूरत है तो तू डायरेक्ट क्वेरी यूज कर ले। उसमें ये होगा कि वो इंपोर्ट नहीं करेगा, वो जो तेरा समझ रहा पर्टिकुलर चीजों के लिए वो डायरेक्ट क्वेरी से वो डेटा ले लेगा। ठीक है, एंड टू अचीव द सेल्स ऑर्डर, अब मान लो फॉर एग्जांपल में क्या लगता है कि तेरे को कुछ दिखाना है। ठीक है, हम्म मान लो तेरे को सेल्स, तूने एक टेबल बना दी जिसमें कुछ कुछ डेटा चाहिएगा, तो वो शायद वो तो उसी टाइम रिफ्रेश करता होगा और वहां से डेटा लाता होगा हम्म। डेटा सोर्स से, और फिर तेरे उसमें विजुअलाइजेशन में दिखाता होगा, है ना, उसको स्टोर नहीं करता होगा। स्टोर नहीं करता, करेक्ट। समझ गया, थोड़ा थोड़ा समझा, क्या समझा? समझा ब्रो। तूने बोला अभी। मैं तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा, मेरे खुद ही नहीं समझ में हाँ, आ रहा तो कुछ कैसे। ज्यादा लंबा बोल गया तो। बट हाँ, लेकिन सही है, कुल मिला के वही है कि वो हम्म, इम्पोर्ट उसका, अरे उसी सेंस में
एक दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है ना इसका। जैसे बोलो बोलो। अ, क्या होगा, नहीं छोड़ना, अभी सूझ नहीं रहा यार। मैं मोबाइल के सेंस में बोल रहा था बट वो नहीं बनेगा। कुछ कुछ ऐसा ही है कि वो डेटा पूरा इंपोर्ट नहीं हो रहा, बस वहां से डायरेक्ट कनेक्शन से वहां से ला रहा है, और तू अपने लिए टाइम हाँ पीरियड वही। के लिए तू उसको स्टोर कर रहा है, फिर जैसे ही तू थोड़े देर बाद वो अपने आप या रिफ्रेश करेगा, करेक्ट। तो वापस से वो डेटा लाएगा हाँ और वो उसी को स्टोर करेगा। करेक्ट। अब मान लीजिए किसी को तेरे को फोटो खोल के देखनी है, हाँ। एक हो तो उसे थंबनेल से देख ले, एक हो तो उसको खोल खोल के देख। हम्म। काइंड ऑफ वही। बहुत गंदा एग्जांपल। लेकिन ऐसे तो बता, ठीक। थंबनेल है तेरा, ये डायरेक्ट क्वेरी और साला पूरा वो पहले कॉपी करके लाके फिर देखिए खोल के देखो, वो तेरा हाँ। इम्पोर्ट हो गया। हाँ, वो समराइज्ड अलग चीज होगी। इंपोर्ट 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 पूरे डेटा पे नहीं करना चाहिए, इंपोर्ट समराइज्ड डेटा पे करो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेरी अगर तुम्हें पूरे डेटा पे करनी है तो डायरेक्ट क्वेरी यूज करो, करेक्ट। फिर भी डायरेक्ट क्वेरी यूज नहीं करनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेरी, हाँ, कि वो अवेलेबल नहीं होता हर टाइम ना, तो हम्म। ऐसे हो जाएगी। ऐसे तैसे हो जाएगी, होती है ना हमारी, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं तो। बताओ। ये सब क्या है? 10 GB कंप्रेशन 20 नया मॉडल है, दूसरा वाला स्टार्ट कर दिया। हम्म। एक्सक्यूज मी, नहीं नहीं कुछ नहीं। As model size may not be supposed by your capacity. Shared capacity can host a model of one size. अरे ये तो भाई साहब अपना अलग फालतू चीज चला दी। ये पढ़ लिया ना अपने कोई पूरा? हाँ, पढ़ लिया अपन ने पूरा। पहले वाले पे आ जाओ। पहले वाला इसके बाद है शायद, जैसे फोर्थ नहीं है, फोर्थ के बाद है हम्म। ऑप्टिमाइजिंग डायरेक्ट क्वेरी मॉडल्स विद टेबल्स लेवल स्टोरेज। हाँ, और समझ में जाएगा फिर इससे। हाँ थोड़ा चलो पहले पे आता है, हम्म। बाद में देखेंगे थोड़ा अच्छे से। मिनिमाइजिंग द साइज ऑफ डेटा टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, ठीक है। अब ये तू जब बोल रहा था ना मिनिमाइज कैसे कर देंगे, डेटा तो छोटा होता है, तो हाँ। ग्रैन्युलरिटी के हिसाब से, नहीं सॉरी ग्रैन्युलरिटी नहीं, कार्डिनलिटी के हिसाब से स्टोरेज कम करने की बात कर रहा था, कि करेक्ट। अगर समराइज कर सको तो थोड़ा समराइज कर दो डेटा को, समराइज कर दो कर। ठीक है। और कितना है छोटा सा ही। In this model, you will be introduced to the steps, process, concept, and the necessity to optimize your data for enterprise level performance. However, keep in mind that while the basic performance and the best practice guidance in Power BI is led you a longer way to optimize a data model for query performance, you likely have to partner with a data engineer or a drive data model optimizing in the source data तो source। ये क्या है? वही है, कुछ नहीं कह रहा है कि भैया डेटा इंजीनियर हायर करो। फिर साल हमारे पास की नहीं है। मारूंगा बहुत, तो फिर मेरे को सिखा क्यों रहा है? फॉर एग्जाम्पल, assume that you work as a Microsoft Power BI developer for a tailwind traders. टेल। हाँ टेल। You have been given a task to review a data model that was built a few years ago by another developer, a person who has since left the organization. The data model produces a report that, अरे वो क्या खटर पटर कर रहा उबासी ली थी यार। है? उबासी ली थी, उबासी। अच्छा, that has received negative feedback from users. The users are happy with the results they see in the report, but they are not satisfied with the report performance. Loading the page in the report is taking too long, and the tables are not refreshing quickly enough when certain selections are made. In addition हम्म। to this feedback, the IT team has highlighted that the file size for the particular data model is too large, and it is हम्म। putting a strain on the organization resources. You need to हम्म। review the data model to identify the root cause of the performance issue and make the change in the optimization. By the end of हम्म। this model, you will able to review your, ये क्या बात हुई भाई, ये तो क्वेश्चन दे दिया, रिव्यू आंसर तो परफॉर्मेंस। बताया नहीं। वो शायद आगे लिए वो ये देखना, रिव्यू परफॉर्मेंस ऑफ मेजर्स रिलेशनशिप एंड विजुअल्स। तो सेम टेस्ट के सिनेरियो अगले में कंटिन्यू करेगा आई गेस। हाँ मतलब अब ये तो इंट्रोडक्शन में था कि अगर मोस्टली ये चीज हो रही है तुम्हारे साथ, कि तो आ हम्म। तो तुम्हारा है पर बहुत डेटा मॉडल बहुत बड़ा है और बहुत तुम्हारा बड़ा धीरे है। धीरे लोड हो रहा है एक पेज रिफ्रेश, हाँ। तो तुम क्या करो, कैसे तुम उसको रिड्यूस कर सकते हो? तो ये सबसे पहला स्टेप जैसे बोल रहा है कि रिव्यू द रिव्यू द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑफ द मेजर्स रिलेशनशिप एंड विजुअल्स, ठीक है।
हम्म मतलब उनकी परफॉर्मेंस देखो किस में दिक्कत आ रही है। यूज वेरिएबल्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड ट्रबल शूटिंग। हम्म Improve performance by reducing cardinality level, levels. optimizing direct query model with tables level storage, create and हम्म manage aggregations। तो ये यस पांचों स्टेप एक वो होगा ना, इम्पोर्टेंट चीज होगी ना एक तरीके से। करेक्ट। तो लिख लो क्या? हम्म हैं? लिख ले, लिखना चाहते लेकिन वो तो को देख ले। ए, ये नो। लिख लेता हूँ, क्या लिखूं? हाँ। सबसे पहले तो हाँ चेक करना है परफॉर्म वो मेजर्स रिलेशनशिप और विजुअल्स। हम्म। फिर वेरिएबल्स यूज करेगा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। फिर कार्डिनेटली कम करनी है। हम्म। डायरेक्ट क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना है। तो यार अगर ये, तो मेरे को लगता है फिर इंटरव्यू क्वेश्चन भी हो सकता है हो सकता है। कि बच्चों को कोई डेटा ये मॉडल इन दे दिया जनरल है ये, हाँ और ये सब बोलेंगे भैया इसको हर ऑप्टिमाइज जगह। करके दिखाओ। क्योंकि बना तो हम्म कोई भी देगा, विजुलाइज तो कोई भी बना देगा, पर परफेक्ट मतलब इम्प्रूव मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस करेक्ट। बेस्ड बनाना उसी को आएगा ना जो एक्सपीरियंस या जिसको ट्रू नॉलेज है। ट्रू। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, रिव्यूइंग द डेटा मॉडल टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द परफॉर्मेंस इश्यूज। ठीक है, हम्म तो इसका क्या क्या है? फर्स्ट है रिव्यू। थोड़ा सा टाइम लगेगा तो पानी पी लेता हूँ। हाँ तो कर ले, आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं। परफॉर्मेंस ऑफ इमेज। नींद आ रही है क्या? पता नहीं यार। तो तू नींद पढ़ बहुत ले, आने लग रहा है। क्या? तू पढ़ ले। हाँ नेक्स्ट वाला। हाँ नींद आ रही है तो मेरे को अकेले नहीं पढ़ सकता मैं कभी भी। हाँ के लिए तो वो होता है अपन। हाँ कोई नहीं, इसे नेक्स्ट ये वाला तो खत्म कर देंगे, जो टारगेट किया है वो तो खत्म करते हैं। हाँ, हाँ अभी तो मेन तो रह रहा है 18 मिनट का। हाँ। वो भी ज्यादा नहीं लगेगा टाइम उसमें, मुझे लगता है वो डेटाबेस को ही समझाएगा बस। हाँ, एक तो यार हम्म, इस पता नहीं इतना क्यों लिख रखा है इन्होंने, चाहे तो सीधा सीधा नहीं बता सकते। थोड़ा हाँ बहुत मतलब वो कर सकता है, मतलब बहुत क्या बोलता है, नोट्स दे पॉइंट टू देते। पॉइंट लिख सकता है। पॉइंट टू पॉइंट बात कर दे, तुरंत बट खत्म वो हो जाए। दिमाग में बार बार डालने के लिए ना हम्म। वो चीज ना, एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो दिमाग में बैठ जाती है वाला चीज। हाँ, तो इनको यार लेवल के हिसाब से बनाना चाहिए कि आप तुम कमजोर हो, तुम पढ़े, दिमाग तेज है तुम्हारा। अगर तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, जैसे मेरे को तो एक घंटा नहीं पता। मेरे को तो कौन सा मैं पता, मैंने पता नहीं 50 घंटे से पढ़ रखा है क्या। तो साले तूने काम तो कर रखा है ना इन चीजों पे। नहीं, कॉमन सेंस है ये। अच्छा तो कान तोड़ दूंगा, कॉमन सेंस। नहीं, कॉमन सेंस है ब्रो। नहीं भाई। नहीं भाई, क्या तेरा तो बिल्कुल ही अलग काम है ना तेरा, तुम पता नहीं क्या ही करते हो। ठीक है। मेरा तो क्या है कि जैसे मेरे को डेटाबेस से मेरा है कनेक्ट इससे करना रहता है रिलेटेड ना, ही, हाँ। तो डेटाबेस से हाँ। कनेक्ट करना होता है तो थोड़ी थोड़ी चीजें वहां से समझ जाता हूँ, है ना। तो हम्म कि क्या हो गया कि अपन ये यूज नहीं कर सकते, वाइल्ड कार्ड एंट्री है ना, तो वो परफॉर्मेंस हम्म इशू करते हैं। तो तेरा बिल्कुल ही डेटाबेस से नहीं है ना, और ये चीजें थोड़ी थोड़ी डेटाबेस से कनेक्ट कर रही है ना, इसलिए बताया, वरना तो मेरे को पावर बीआई के बारे में तो कुछ नहीं आता। हम्म समझ गया क्या कह रहा हूँ? हम्म। नहीं तो फिर मैं सही सही मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ, आधी बार में कुछ भी बोल देता हूँ, नाम पढ़ के मैं समझता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। आप पढ़ो। हाँ उससे समझ में तो आता है काफी कुछ। पढ़ो। अरे हम्म। वो कर रहा है, वो करता है, वो क्या करता है बे? अब तीन चीज देखनी है, मेजर, रिलेशनशिप और विजुअल्स। ठीक है। विजुअल्स ठीक है। हम्म। तो इसमें बोल रहा है if your data model has multiple tables, हम्म। complex relationships, हम्म। uh, intricate calculation, हम्म। multiple visuals हम्म। and redundant data, हम्म। a potential exists for poor report performance. हम्म। The poor performance of a report leads to a negative user experience. अच्छा, That's यूजर true. स्टोरी बना रहा है क्या ये?
ये तो मेरा एज अ बिजनेस क्लाइंट आई वांट लिख दो क्या? ठीक है. ठीक है। To optimize performance, हम्म। you must first identify where the problem is coming from. हम्म। In other words, find out which element of your report and data are causing the performance issues. ठीक है। Afterwards, you can take action to resolve those issues हम्म। and therefore improve performance. बिल्कुल सही बात। ओके, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है. सो आइडेंटिफाई रिपोर्ट परफॉर्मेंस हम्म। bottlenecks. हम्म। To achieve optimal performance in your reports, you need to create an efficient model that has fast running queries and measures. हम्म। When you have a good foundation, you can improve the model further by analyzing the query plans and dependencies and then making changes to further optimize performance. हम्म। Okay, query plan and then okay. You should review the measures and queries in your data model to ensure that you are using the most efficient way to get the results हम्म। that you want. You starting your starting point should be to identify bottlenecks that exist in the code. When you identify the slowest query in the data model, you can focus on biggest bottleneck first and establish a priority list to work through the other issues. बकवास कर रहा है एक हाँ, घंटे से। हाँ। ठीक है. हम्म। फिर उसमें बोल रहा है एनालाइज परफॉर्मेंस. हम्म। You can use performance analyzer in Power BI ओ। desktop to help you find out how each of your report elements are performing when users interact with them. हम्म। Okay, performance analyzer एक और tool ही हम्म। है इसके अंदर. Good. हम्म। For example, you can determine how long it takes for a particular visual to refresh when it initiated by a user interaction. हम्म। Okay. Performance analyzer will help you identify the elements that are contributing to your performance issues, which हम्म। can be useful during troubleshooting. हम्म। Before you run performance analyzer, to ensure you get the most accurate results in your analysis, that is test, make sure that you start with the clear visual cache and clear data engine cache. ओ तो Okay. अच्छा मतलब पहले क्लियर विजुअल कैश। हाँ, तो ये तो कुछ होता होगा इसके अंदर, वो मेमोरी में जो पहले से हम्म। स्टोर होके रखता होगा इसके हाँ लिए. हाँ। तो वो सब क्लियर करके ताकि एक्यूरेट रिजल्ट मिले अपन को एनालिसिस के. हम्म। ओ, क्योंकि अच्छा वो डायरेक्ट क्वेरी क्या पता, वो पुराने रिपोर्ट्स पुराने भी ले लेके कर कुछ एवरेज निकालता होगा. तो मे बी पुराने जो हम्म। कैश में पड़े रहता होगा उसको उनको भी डिलीट वो, करता होगा फिर नया को डालता होगा तो उसमें भी टाइम कंज्यूम होता होगा तो इसलिए उस चीज को भी या तो वो या फिर जो जो ओवरऑल रिपोर्ट देता होगा ना, हाँ। तो ये जो पुराना, क्योंकि देख बैकग्राउंड में चलता तो रहता होगा ये, हम्म। बस अपन इसको बस देखने के लिए यूज में लेते होंगे, समझ रहा है. अच्छा हाँ तो जो रिफ्रेश कैश होता में होगा जो, तो वो तो एक टाइम बाद होता है ना हाँ, अपन जैसे कुछ डालते हैं कि हर 5 घंटे में रिफ्रेश हो या 12 घंटे करेक्ट में तो करेक्ट. डेटा तो रिफ्रेश होता ही होगा और विजुअलाइजेशन भी तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती होगी डेटा रिफ्रेश होते ही। हाँ, तो हम्म। मे बी जो कैश वगैरह ये हम्म। जिसमें लिखा हुआ है वो देखते हाँ पड़ पढ़ो जाओ, ना। देखिए. तो एक्सक्यूज मी. और राधे. अरे क्या एक्सक्यूज कर दिया इस तरह से बोलो। Visual cache है. When you load a visual, you हम्म। can't clear this visual cache without closing Power BI desktop and opening it again. है, ओ, ये क्या फायदा without closing. है। ये तो इतना देसी तरीका है ये तो. ये तो तुम तो बिल्कुल ही देसी हो रहे, ये तो बिना पढ़े लिखे हम वैसे ही करते हैं कि कर काट के दोबारा चलाते क्या पता बढ़िया चल जाए। ये क्या बात हुई भाई। अरे यार. To avoid any कैचिंग बोलेंगे, के सी कैशिंग। ए क्या, कैशिंग बोलेंगे हाँ ना, हाँ. कैशिंग। Okay. To avoid any caching in play, you need to start your analysis with a clean visual cache. Okay. To ensure that you have a clear visual cache, add a blank page to a Power BI desktop .pbix file, and then with the page selected, save and close the file. Reopen the Power BI desktop PBX file that you want to analyze. It will open the blank page. है ये क्या है। To ensure that you have a clear visual, guys, add a blank page to Power BI desktop हम्म। file, and then uh, with the page selected, save and close the file. अच्छा ठीक है, उसी को हम्म। सेलेक्ट क्रिएट किया, फिर अपन इसको सेव और क्लोज हम्म। कर दिया. Reopen the Power BI desktop हम्म। file that you want to analyze. ओ, File that, oh, ओके। तो फिर
Okay, it will open the blank मैं page. बताऊं, देख मेरे को क्या लग रहा है, मैं बताता हूँ, मैं एक मिनट थोड़ा इस तरह जाता हूँ, ठीक है। जैसे मान ले इसमें पेजेस होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अच्छा, ये यहाँ पे जैसे पेज 1 है, पेज 2 है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है हाँ, ये। पेज 3 अच्छा है, ये, ओके ऐसे पेज। ओके ओके। तो ये कह रहा है कि 3 खोल के तूने 7 क्लोज कर, ठीक है। फिर तब तू हाँ। ओपन करेगा ना, तो इस डायरेक्ट खुलते वक्त पहला थर्ड पेज ही रहेगा, ठीक है। अब इसका अच्छा ओके। इसका ये फायदा होना है कि मान लो अगर तूने ओपन करते वक्त ये खुल रहा है, तो ये चीजें हम्म लोड होंगी ना, इसके विजुअल्स लोड होंगे, तो वो लोड होते हम्म। वक्त वो पुरानी इमेज को अपने कैशे में ना स्टोर कर ले, इसलिए हाँ, अपने थर्ड वाला खोलो, और फिर यहाँ ऊपर से जो भी इसमें परफॉर्मेंस एनालाइजर पे है। कहाँ है भाई ये? एक, सर्च कर ना, अरे कहाँ ऊपर आएगा छुपा ना। हुआ है? सर्च कर ले। हाँ, ये रहा। तो फिर यहाँ से तो डायरेक्ट इसको चालू कर दे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हम्म। यहाँ से तू स्टार्ट रिकॉर्डिंग करके फिर तू डायरेक्ट फर्स्ट पेज पे जाए, तो जब वो लोड अच्छा। होंगे वो इतने में यहाँ पे उसकी सारा हिसाब रिकॉर्ड कर लेगा। समझा समझा, ऐसे करना है। अच्छा, पेज ये होता है, मुझे लगा कि पेज हम्म। उस थ्रू आउट, ओके, से पी होता है, पेज 1 2 3, ओके, ओके, ये जैसे रिपोर्ट में आता है सर, है ना? रिपोर्ट इसके बाद क्रिएट हो, पेजेस से ही रिपोर्ट क्रिएट होती है ना, पेजेस से रिपोर्ट, अच्छा 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 शायद अच्छा। डेटाबेस मतलब नहीं, जो ये तीन में जो है ना, ये मॉडल विजुअल और ये जो हम्म। तीन डॉट, जो तीन कॉलम्स, नहीं नहीं, ये लेफ्ट लेफ्ट साइड में है, पूरा स्क्रीन की लेफ्ट साइड में, लेफ्ट तो में। राइट में जा रहा है, लेफ्ट, हाँ, हाँ, ये ये जो है ना रिपोर्ट ही ये। है, हाँ रिपोर्ट ही है। शायद इन हाँ, सब पेजेस को रिपोर्ट कहते हैं, और इसके इंडिविजुअल पेजेस हैं। एक बार उसके नीचे वाले कॉलम पे जाइए, मतलब आइकन पे जाइए। इसकी ये रिपोर्ट हो गई, नहीं, ये इसके नीचे, डेटा हो हाँ, गया, डेटा। और ये डेटा मॉडल। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है पेज, है ना, सिर्फ उसमें इसमें नहीं आता है है, पेज, ओके। सिर्फ फर्स्ट में आएंगे, इसमें तो सिर्फ अरे, डेटा देख हाँ सकता है, और इसके अंदर हाँ तू हाँ, इसके रिलेशनशिप देख सकता है। रिलेशनशिप देख सकते, हाँ वो है, बट हाँ, मैं ये देखा था कि पेज किस में आता है पेज पेज, फर्स्ट हाँ। में आता है। फिर फर्स्ट में हाँ, ये आता है रिपोर्ट रिपोर्ट। है, और ये इसकी इंडिविजुअल पेजेस, जैसे अपनी रिपोर्ट नहीं इस, होती उसमें बहुत सारे पेज हाँ होते हैं हाँ हाँ वैसे। हाँ फिर तू हाँ, यहाँ से वैसे। इसको पब्लिश कर सकता है। फिर इसका तो ठीक। वो भी बना सकते हैं अपन, इसका डेटाबेस नहीं होता है, नहीं सॉरी, डेटाबेस क्या होता है, अरे एक होता हम्म, है यार, मैं क्या क्या कहते हैं उसे। एक तो हो गया शीट हो गई, ठीक है, उसके बाद एक हो हाँ, गया डेटाबेस, नहीं नहीं, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड अच्छा। में तू कुछ जैसा तेरे को चाहिए वैसा तू कर सकता है, मतलब इस पेज से कुछ और हम्म चाहिए, इस पेज से कुछ और चाहिए, तो सबसे ठा ठा के पूरा एक बड़ा मतलब हो गया ना। जैसे हम्म डैशबोर्ड हम्म, उसमें हम्म। नहीं होता, जैसे कोई तू देखा हो जिसमें ऐसे बहुत सारे ग्राफ बने रहते हैं अलग अलग तरीके के, तो हाँ हाँ वो हाँ हाँ। तेरा परफॉर्म मतलब तेरे को आउटपुट जो तेरे को चेक देखना है वो वाला हो गया। और वो मल्टीपल्स, अलग अलग टाइल्स हाँ क्रिएट कर करके जो, हाँ, टाइल्स होते हैं, सही, वो जिनको टाइल्स कहते हाँ, हैं, वो छोटे छोटे टाइल्स अलग टाइल्स, अलग, और बन के एक हाँ पूरा हाँ हाँ डैशबोर्ड, मतलब जैसे बड़ी स्क्रीन पे नहीं होता बहुत सारे ग्राफ हाँ बने हैं, हाँ हाँ वो हाँ उसी हाँ हाँ। डैशबोर्ड कहते हैं, वो अलग अलग रिपोर्ट से अलग। वो टैबल्यू में होता है, ठीक है, इतने मेरे को वो। अच्छा। अब इसके अंदर होता है कि नहीं होता नहीं पता क्योंकि इसमें दिख हाँ नहीं रहा कहीं मेरे को है ना, इसमें अब तक आया ही नहीं ऐसा कुछ कुछ। हाँ, वो इसमें तो डायरेक्ट कोई पब्लिश का ही दिखा रहा है, पता नहीं कैसे होता है। कोई इसमें नहीं, ये शायद तो रिपोर्ट माइक्रो, बनती होगी खाली, है ना। हाँ, ये तो एक्सेल वाली वाइब दे रहा है ये पावर बीआई तो। हाँ, थोड़ा उसी से उसका तो बाप है। वही ठीक है, तो क्या अच्छा। बात कर रहे थे अपन, परफॉर्मेंस वो व्यू में मिलता है, व्यू में जाओ, इसको हाँ, व्यू में गए, व्यू में जाने के परफॉर्मेंस बाद एनालाइजर, ये शो रहा एंड में। पैन्स में जाओ, नहीं और नहीं, ये रहा ना। अरे, सेकंड ऑप्शन, सेकंड लास्ट ऑप्शन। फिर उसमें परफॉर्मेंस एनालाइजर। समझ नहीं रहा, किसमें? मैं डिटेलिंग ले रहा हूँ फुल। तो फिर से बोल, कहाँ गया था तू, तेरा वो ये व्यू में गया। हाँ, व्यू में गया, ठीक है, व्यू के अंदर ये हाँ, देख, शो पैन्स नहीं है, शो पैन्स, शो अच्छा अच्छा, पैन्स ये, के अंदर परफॉर्मेंस अच्छा एनालिसिस। वैसे, ऐसा ओ, मैं क्या तू मैं कि मेरे को देखे कहाँ लिया है तू फुल डिटेलिंग में अरे, जा रहा हूँ मैं, फुल डिटेलिंग में। डैम बड़ी, डैम समझ गुड। गया तू तो घना तेज हो रहा है अभी चल, देखो, आगे ये विजुअल कैश तो पता चल गया कैसे मिटाने का होता हम्म, डेटा इंजन तो बंद ही करना पड़ेगा पावर पे एक बार, मुझे बोला लग रहा है भाई बोला कंपनी बंद करो कंपनी दोबारा चालू करो, फिर होगा केयर पे कॉल करो, रिबूट करेंगे सर्वर सर्वर बंद करो, तार पाड़ो मजा आ जाएगा, मेरे को काम दे दे, मैं तो तार काट दूंगा सारे पानी फेंक देंगे सर्वर पे बोला सर आप ही कह रहे थे बुझा दो, हमने बुझा दिया, पानी गिर गई अरे यार, ये रहा। चल ठीक है, सो डेटा इंजन कैश,
Mm-hmm. When a query is run, Mm-hmm. the results are cached. Mm-hmm. So the results of your analysis will be misleading. Mm-hmm. Ah, okay. Mm-hmm. You need to clear the data cache before rerunning the visual. To clear the data cache, Mm-hmm. you can either restart Power BI desktop or connect Dex Studio to the data model and then call clear cache. Then call clear cache. ये कुछ है क्या? कैसे करेंगे भैया? ये तो मैंने नहीं सुना कभी, देखो कितना बड़ा है। रीस्टार्ट वाले है वो ओहो, साला बहुत कॉल सारा। क्लियर। यार इतना सब कैसे पढ़ पाएंगे? क्या क्या लिखा है? ये नहीं नहीं कॉल के लिए हाँ ये कह रहा है कि कनेक्ट कोई डेक्स स्टूडियो टू योर डेटा हाँ मॉडल एंड एंड देन देन कॉल क्लियर। क्लिक एस। तो ये कोई क्या है? फंक्शन वगैरह है क्या ये? यार ये तो मेरे को भी नहीं पता। छोड़िए बढ़िया अपना अच्छा इधर रीस्टार्ट पावर बीआई डेस्कटॉप ये हम कर देंगे। और क्योंकि एनीवे सुन जेपी क्योंकि मैं बता रहा हूँ वो जो अगर हम वो कर रहे हैं हम्म। तेरा जो ये विजुअल कैश क्लियर कर रहे हैं हम्म। उसके लिए एक बार रीस्टार्ट तो हो ही रहा है ना। हाँ, उससे दोनों हो जाएगा। दोनों हो ही जाएगा पर उससे डेटा इंजन भी ये कैश क्या क्लियर है? कनेक्ट डेक्स करेंगे स्टूडियो डेस्क स्टूडियो टू टू द द डेटा डेटा मॉडल मॉडल एंड देन कॉल देन डेटा मॉडल के अंदर ये कोई कोई फंक्शन होगा एक क्लियर कैश का देखने को ऐसा एक लगता है। सेकंड रुकना, ये चीज सर्च कर लेते हैं ना। हाँ देख थोड़ा ये चीज थोड़ा अच्छे से करते हैं, क्या दिक्कत है? कंट्रोल वी। डेक्स स्टूडियो क्या होता हम्म, है? डेक्स स्टूडियो ये कोई अलग चीज है भाई? डेक्स स्टूडियो डॉट ओ आर जी, ये तो भाई साहब अलग ही सोना पॉइंट खुल गया। और भैंस की टांग इसका भी कर लेंगे सर्टिफिकेशन। बोला तुम दोनों साथ ही आ जाओ, दोनों को समझा देंगे एक बार में। तुम आ जाओ भाई। हाँ। इसकी खोपड़ी क्या है भाई कनेक्टिंग टू एसएसडी मेरे को क्या सीक्वल लग सर्वर। रहा है, जैसे अपन टैबलेट सर्वर हो गया, कनेक्टिंग सर्वर, तो ये पावर बीआई को वो करने के लिए होगा मतलब लेयर सर्वर को होगा एक। डिस्कनेक्ट कर दें क्या, पूरे सर्वर को ही फिर दोबारा कनेक्ट करें? पता नहीं वही लग रहा है एक बार इसमें देख ना क्लियर कैश फंक्शन इन डेक्स स्टूडियो। हम्म। अरे मैं देख तो रहा हूँ ये क्या पता होता क्या कुछ है, क्लिक ऑन स्टार्टिंग अंडर द प्रीमियम ऑप्शंस। पर मैं वो देख रहा हूँ कि है था कहाँ है ये। अच्छा कनेक्ट करने के लिए अच्छा। हाँ, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, ये वाला सेटिंग्स। ये मैं पढ़ा नहीं हूँ उसने बोला सेटिंग्स, तो सेटिंग फिर ये इसमें होगा लिखे जेपी। डेक्स स्टूडियो, लिख दे क्या? हाँ लिखना लिख लिख आएगा तो सही। नहीं है। अगर इतना ही तगड़ा है तो आना चाहिए। होता नहीं होगा, मेरे को लगता है डेक्स स्टूडियो कुछ होता ही नहीं है, वो कुछ नशे में बना दी क्या वो। सेटिंग देखता हूँ। सेटिंग है ना ये पर सेटिंग ही इधर नहीं से नहीं आएगा वो बाहर से मिलेगी जेपी। है ना। हम्म फाइल में गई फाइल ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, प्रीम डेटा सोर्स अच्छा सेटिंग्स। हम्म प्रीमियम दिखा रहा है कुछ हाँ, चेंज एक्सपोर्ट क्लियर परमिशन तो कुछ और ही है यार। जैसे ये अपन डेटा सोर्स से साथ कनेक्ट है ना। हम्म डेटा सोर्स इन करंटली फाइल, ठीक है। ग्लोबल परमिशंस अलग चीज होगी, जैसे डेटा। ये तो चीजें कुछ अलग ही हो गई ना। हम्म एक्सपोर्ट पी डी डब्ल्यू आई एस क्या होता है? शायद इसमें शायद डेटा सोर्स आएगा। नहीं तो पी एक्स आईज होता है ना, जिसमें तो वो आता है, विजुअल्स पीवीआईएक्स होता है। हाँ ये डीएस था। अच्छा, नहीं है अपने काम की चीज। इधर देखते हैं, हम्म शेडिंग कोड ऑप्शंस में। ये तो ऑप्शंस है, ये तो अलग चीज होगी ना। हाँ हम्म। देख सुन हम्म। दे कुछ है डेटा लोड सर्च का ऑप्शन है जीपी ऊपर उसमें सेटिंग्स में कुछ नहीं है। डायरेक्ट क्वेरी सिक्योरिटी। प्रीव्यू फीचर्स इसमें देखो क्या क्या दिखा था। देख Settings use under the premium option, choose premium as user, then copy the workspace connection strings। अरे ये तो कुछ अलग ही करा रहा है यार, मेरे को ये नहीं लगता क्या है। और कनेक्ट डेटा स्टोरेज टू द डेटा मॉडल, देन क्लियर ऑल कैशेस। इसी को पूरे में डालू क्या? क्या है ये? समझ के बाहर है तो। हम्म डिटेलिंग भी नहीं दिया ना इसने कुछ थोड़ा अच्छे से। क्या तो फोटो बाद में बताया। फोटो फाटो दिखा देता।
हम्म, ये क्या कर रहा है? Connecting a Mhm. Dex Studio to Power BI to capture queries. Keeping Power BI desktop on open with the empty page. Select Open Dex Studio and then select. यार यहाँ पे ओपन डेस्क कहाँ आ रहा है यार? क्या पता इसका कुछ हो ना अच्छा, जीपी, अरे उसमें उल्टा होगा। होगा। होम इसमें होगा डेस्क ना, स्टूडियो। इसमें होगा ना। जैसे अलग अच्छा, अलग डेटा स्टोर्स हैं तो डेस्क स्टूडियो होगा इसमें। मोर देखो। डेस्क उनको तो लगता है हम्म, डेस्क स्टूडियोज को डेटा थोड़ी देगा यार, क्या लगता हाँ ये डेटा ही देगा तभी तो है। है? ये क्या पता इसके ऊपर एक और लेयर हो। हाँ हो नहीं सकता देख है। सकते। कोई हाँ डेटा, मेरे को तो वही लग रहा है, तो तू सही कह रहा है कि जैसे ये एक तो डेटा विजुअलाइजेशन का है ना, एक डेटा स्टोरेज का हो। हाँ, हो सकता है, हाँ। हम देखेंगे जैसे अलग अलग डेटा, इसमें सर्च करूँ डी सर्च ए कर। एक्स। हाँ, इसमें आना देख। ये तो कुछ है अरे, ही नहीं। है भी कि नहीं है? हम ऐसे ही बावले हो रहे हैं। इनको अपने डॉक्यूमेंटेशन सुधारने की जरूरत है यार। सर्टिफिकेशन क्वेश्चन दे दिया ना, डेस्क कैसे कर देंगे इनके। बोला तो केस। केस कर देंगे। तो कुछ है ही नहीं। यार मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ, इसका वीडियो देखना पड़ेगा तब समझ में आ जाएगा डेस्क का कैसे इंटरेक्ट करता है पावर बीआई और डेस्क, तब समझ में आएगा वो। हम्म, क्योंकि देख यहाँ पे देख फोटो में तो आ रहा है, देख कनेक्शन की जैसे खोल नहीं रहे बट कनेक्टिंग, तो ये डेटा नहीं, सोर्स से ही तो कनेक्ट कर नहीं रहे हैं। सुन तो सही, देख, लेकिन ये पावर बीआई का इंटरफेस है या फिर डेस्क का इंटरफेस है वो देख। वो भी तो हो सकता है। हाँ, क्या पता कि वो रहा ना, ऑल क्वेरीज में था क्या? नहीं, ये तो अलग है। ये अलग है, ये कुछ अलग है, मैं समझ गया। डेक्स स्टूडियो कोई और ही चीज है। देखने अभी सर्च मारते हैं खाली डेक्स स्टूडियो। तो उल्टा तो नहीं कि डेस्क स्टूडियो के अंदर अपन पावर बीआई कॉन्फ़िगर करते हो और फिर यहाँ पे आता हो, हो जैसे सकता है। तेरा एसक्यूएल एसक्यूएल दिखा रहा है ना क्योंकि वो। डेक्स स्टूडियो डॉट ओ आर जी है तो मतलब कुछ अलग ही चीज है। ये तो प्रॉपर कुछ हाँ, अलग अपना खुद का है। ये देखिए ऐसा करके होगा डेक्स स्टूडियो, हाँ, द अल्टीमेट माइक्रोसॉफ्ट। टूल टू वर्क विद डेक्स क्वेरीज। क्वेरी हाँ, ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ होगा। तो देखिए डाउनलोड करने के करेक्ट। लिए देना ना अलग ही। देखिए खुद ही करो। अब मैं ये देखा अब आ गया, हाँ कनेक्ट। इससे क्या समझ करेगा? रहा है। हाँ तू पावर हाँ, बीआई को कनेक्ट करके फिर उस डेटा को डेक्स को एनालाइज कर रहा है। और ये हाँ, देखिए वो है ये। प्रीमियम भी कुछ आ रहा है। अरे अपना सारा वो कर रहा है, पब्लिसिटी कर रहा है हाँ, हरामखोर। हाँ, वो तो बोलो कि वो उसके ऊपर के लेयर है पावर बीआई के ऊपर का एक और। हाँ हाँ, यहाँ ये ज्यादा शाना बन रहा है ना क्या? तो तुम क्लियर ऐसे कर लो, नहीं तो तुम हमारी एक और सर्विस यूज कर लो। तेरी हाँ, बात, समझ गया भाई, अपनी दोनों सर्विस यूज चीज है। करवा रहा है क्या? अब हम तो काट के वही। काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो एक बार तो हो ही रहा है ना, विजुअल का तो कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। हाँ विजुअल के लिए बंद हो रहा है तो वो अपने हाँ, आप हो ही जाएगा डेटा इंजन भी। वही तो यार, हमें यार इतना हम्म, टाइम बर्बाद कर दिया। ठीक है, so when you have cleared the cache and open the power bi desktop file on the blank page, go to the view tab and select the performance analyzer option. हम्म To begin the Radhe. To begin the analysis process, select start recording. हम्म Select the page of the report that you want to analyze हम्म and interact with the element of the report that you want to measure. You हम्म will see the results of your interaction display in the performance analyzer pane हम्म। as you work. You are uh, when you are finished, select the stop button. अच्छा, ठीक है, easy है तो। हाँ वो ये जो आया था ना, यहाँ पे स्टार्ट था, फिर जो पेज है हाँ, उसको सेलेक्ट कर लो जाके। और फिर वो अपने आप वो रिकॉर्ड करता रहेगा सारा टाइमिंग्स। फिर तूने कर लिया हाँ, पंचायत, सारा खोल खाल देख लिया, फिर अपने स्टॉप कर दे, फिर देख ले कौन सा ज्यादा टाइम फिर लगा रहा है। देखिए वही। अब 2 सेकंड फिर मार लो इंतजार पंचायत। करो, अभी मैं इसमें लिख लेता हूँ पहले। तू भी लिख क्यों नहीं रहा? क्या कह रहे हैं ये पे? तू लिख क्यों नहीं रहा?
मैं तेरे नोट्स ले लूंगा ना। मेरे नोट्स मेरे को नहीं समझ में आते लिखने के बाद। नहीं नहीं, मैं समझ जाऊंगा तेरे से। तेरे नोट से पढ़ के पास हुए भाई, यार क्या बात कर रहे थे, तो हम 11वीं 12वीं। अम्बा मैं नोट्स ही नहीं बनाया 11वीं 12वीं में कभी। कैसी तो वही बात कर तो। रहा है? हाँ, तो 10 साल बैठते तो पढ़ के पास तो हो जाते हैं। 12वीं में तो क्लास में कोई पेन कॉपी है क्या होता है, मैं तो ले ही नहीं पेन गया। को, वही ना तो। मेरे तो पापा ने यूज में लिए मेरी पेन कॉपियां भाई, देखा नहीं तूने उस दिन कुछ कुछ लिखा रखा था। हाँ मैंने तो दुनिया को मुन्ना बांटी और, रेफल्स वाली। कोई लेके जा रहा है, हाँ, कोई लेके जा रहा है, ले जाओ कोई तुम कोई ऐश लेके जा करो। रहा है। पांडे को दी थी एक जब यहाँ, बार तो। वो अरे तेरे को याद है जब ये साले विपिन और ये गए थे माधव के एक्स्ट्रा पास कि कॉपी हमें ले। और चाहिए। हाँ हाँ। हमने बोला कि हैं। हमारे तो हमारे तो वे पड़ी हुई है अभी हमारे तो तक। आज घर का कह रहे हैं इतनी कॉपी अक्के करा को। पता नहीं भाई, वो फ्री में मिल रही तो ले ली भाई, हाँ ले ली वरना भाई। भाई फ्री की चीज तो, और भाई पेपर क्वालिटी बढ़िया थी ना यार। भाई को एक नंबर, दिखने में इतनी बढ़िया। हाँ हाँ वही तो, मैं तो लोगों को खूब बांटी है, ले जाओ भाई यार रफ काम करो। रफ काम करो, वही तो। अबे एक सब वो तेरा, पता नहीं 2 सब्जेक्ट की तो एक में बना रखी थी यार, क्योंकि अपनी चेक वेक तो होती नहीं थी कुछ। 2 सब्जेक्ट, अरे भैया मटरू की में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। मटर में तो कुछ किया ही नहीं, मटरू के में तो कुछ नहीं किया, वो पेपर में उसके ड्राइंग बनाते थे बस। हाँ हाँ हाईलाइट में तो है शायद, उसमें भी कुछ नहीं किया, बस वो एक नाम की फिजिक्स लिख रखी थी और ऐसे खोल के बैठ बस जाते थे। सिर्फ मैथ मैथ की थी तो थी बस। मैथ और की तो थी बस। इंग्लिश की तो क्या, इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश की कोई कॉपी बनाता है इंग्लिश का कुछ नहीं थी ना, अपनी वो थी, क्या। सी प्लस प्लस का कुछ नहीं था। C++ में तो क्लास में ही नहीं जाते थे। ना। जाते थे हाथ तो उसके जोड़ता था। थप्पड़ मार देते थे। यही होता था। तो कौन कॉपी बनाएगा, सिर्फ मैथ की बनी है कॉपी बनी है तो, वरना तो वही तो। हाथ ही नहीं लगाया कहीं। एक बार क्या भाई, लड़ाई के बहाने निकल गए थे बाहर। है ना, ध्यान है, दोनों मस्त। देख रहा हूँ, "ओए, मेरे कस मार भाग गए दोनों, चल बाहर जा, बाहर आ तो वही बताता तो, हूँ। और ध्यान है, और मैंने जहाँ तक दरवाजा जोर से देके मारा था। वो टीचर सोच रहा हो क्या रहा है ये मेरी क्लास में, रोकू कि नहीं रोकू, पता चला मैं पिट वो जाऊं। बोलता, भाई ध्यान है, पहले खड़ा रहता था गेट के बाहर और कहता, अब क्या हाथ जोड़ू तुम्हारे आगे। हाँ लोग उसके गेट के भाई बाहर मैं, खड़े रहते थे, अंदर भाई नहीं घुसते थे। अंदर नहीं घुसे, बोलता है भाई मैं पैर पड़ता हूँ तुम्हारे, आ जाओ मेरी क्लास में। अरे यार पता नहीं, मैंने कहा अलग ही था यार वो ऐसे। गलती मैं कहा सिस्टम। सर आप जो पढ़ा रहे हो समझ आ नहीं रहा है तो कोई क्यों ही आएगा। आप पढ़ा रहे हो या फिर आप अपने मंत्र पढ़ रहे हो? और वही तो, फिर क्लास में जब आ जाते थे ना लोग, हम्म, और फिर थोड़ा फिर उनसे पंगे फिर लेता था। ज्ञान देता था ज्यादा ही। फिर ज्ञान देता था, और थोड़ा फिर एक बार आदित्य से बोल रहा था, एक बार मेरे से बोल रहा था, ध्यान है। आदत भी साला तो मैं क्या खराब है। यार, ये तो खराब है वही पहले ना। तो आ जाओ फिर आने के बाद पढ़ना, चुपचाप और पढ़ा वो तो लो, हाँ, ज्ञान फिर वो देगा ऐसा। हाँ, फिर सोचता कि अब इनको घर लेंगे। आदित्य ने तो मस्त मारा भाई। वो तो भाई ऐसा लगा रबर बैंड की तरह, जितनी तेज खींचा उतनी तेज वापस आया। और बाद में से बोलता है ना, ले इस गाल पे ही मार ले। और फिर नहीं, फिर थोड़ी बाद में ये भी बोलते हैं ना, छप तो नहीं गया कहीं, बाहर जाऊंगा कोई टीचर देखेगा वो। देख, इसको देख, पता तो नहीं चल रहा कि मारा है इसने। फिर रोने लग गया। फिर सरदारन ने उसकी ऐसी तैसी कर दी। सरदार ने कब की करी है ना और इसकी? सरदारनी की थी उधर मैस में। अच्छा क्या वो कुछ कर रहा होगा ना। पता नहीं भाई, अपन, पता नहीं, स्टोरी नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हम्म। बट सरदाना ऐसे उंगली दिखा दिखा के वो कर रहा था, और वो खड़ा होके वो रो रहा था भाई वो। हाँ 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 सही कह रहा है, पर याद हाँ, नहीं है वो क्या हुआ था। याद नहीं है, वो सरदाना चिल्ला रहा था उसपे सबके सामने। हाँ 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 पूरे पूरी स्कूल के बच्चे थे उस टाइम पे, सब खाना सही खा सही रहे थे। कह रहा है, बात तो तेरी सही है, पर ये था किस लिए वो हाँ, पता नहीं ना। पता नहीं यार। अलग ही तो बड़ा सिस्टम। बढ़िया शो चलते थे यार अपने में तो। अरे भैया मजे आते। ऐसा अपन कॉलेज लाइफ जी रहे थे। स्कूल लाइफ क्या मैं होती वही है। तो कह रहा हूँ, अपना स्कूल तगड़ा था कॉलेज से भाई। यार वही चलता ना, मजा आ जाता है साला फर्स्ट। क्लास में जाते जाओ, वरना हैं। मन किया तो गए क्लास, वरना नहीं गए। अगर ये अपनी कॉलेज भी इसी के पीछे जुड़ी होती है ना तो यहीं से ही कर लेते। हाँ, ये तो है। पर कॉलेज तो थी तो सही, पर वो बेकार थी। ऐसा होना चाहिए था कि कॉलेज भी है ना, कंटिन्यू कर लो स्कूल को ही। समझ रहा है, हाँ या अपन को और टाइम मिलना चाहिए था स्कूल में, समझ रहा है, कि जैसे 12वीं पे खत्म हो गई और लेट्स से अगर 1 2 साल और होते ना, हम्म। तो और मजे आते। मजे तो आ जाते हैं। हम्म। होता है।
कर लिया तेरे फिर? हाथ से भी नहीं जाती वो। अरे वो पढ़ाई कर ले क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जा जा ठीक है। पढ़ाई करनी हाथ नहीं है, बकवास करा लो इससे। चल नीचे तो करना फिर। 2 मिनट रुक, लिखने दे। विजुअल हाँ कैशे। विजुअल कैसे कैसे क्लियर करते हैं? बंद करके उसको एक एक ब्लैंक पेज ऐड कर दे हम्म। और सेव कर दे और फिर बाद में क्लोज कर दे फिर से खोल दे। जिस फाइल को एनालाइज करना है उसको। हाँ, ब्लैंक पेज एंड सेव एंड क्लोज क्लोज। ऑन ब्लैंक पेज। हम्म। फिर जिस फाइल को एनालाइज करना है वो फाइल खोलो। हाँ हाँ, अब ये क्या डेटा इंजन एक्सेस है ना? हम्म। इसमें कैसे, इसमें भी वही ना? इसमें भी क्लोज करना है हाँ। और डेक्स क्लोज स्टूडियो ही एंड करना दूसरा ऑप्शन है। ओपन, और दूसरा है यूज डेक्स स्टूडियो डेक्स स्टूडियो एंड कॉल टू। क्लियर कैश। हाँ, कैशे। तो ये चीजें तो करनी है ना अपने को? दो तो कर, दो ही तो ही तीसरी क्या है? हाँ, तो ये तीसरी नहीं क्या है? नहीं नहीं, ये दो चीज करनी है। क्लियर हाँ विजुअल्स एंड कैश डेटा डेटा इंजन इंजन कैशे परफॉर्मेंस का एनालाइज करने के लिए। बिफोर यूजिंग बिफोर परफॉर्मेंस। यूजिंग परफॉर्मेंस जब भी 12 बज गए भाई। एनालाइजर। अरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है पढ़ाई करने की। अरे ओ नींद आ रही है जल्दी कर भाई। ओके भैया, शुरू करो। हम्म। ये तो हो गया था ना? ये हो गया था। अब ये रिव्यू कैसे ठीक है रिजल्ट फॉर करें? मोरली रिव्यू रिजल्ट। हम्म। You can review the results of your performance test in the performance analyzer pane. हम्म। To review the task uh, in order of duration, longest to shortest, right click on the sort icon हम्म। next to the duration column header, हम्म। and then select total time in descending order. अच्छा हम्म। ठीक है। The log information for each visual shows how much time it took to complete the following categories of task. हम्म। Dex query, Dex query है तेरा that the time it took for the visual to send the query हम्म। along with the time it took analyze services to return the result. Okay. ओके। Visual display है तेरा the time it took for the visual to विजुअल्स render on the स्क्रीन। screen including the time required to retrieve web images or geocoding. हम्म। ठीक है। Other the time it took the visual to prepare queries, wait for other visual to complete or perform other background processing tasks. If these categories displays a long duration, the only real way to reduce this duration is to optimize Dex query for other visuals or reduce the number of visuals in the report. Other के लिए तो यही सीन है हाँ। अदर क्या होता है? दो अदर में तेरा वो आ रहा है कि तेरा हम्म। क्या बोलते हैं कि विजुअल कितना कंप्लीट किया हम्म। और क्वेरी को प्रिपेयर होने में कितना टाइम लगा हम्म। और जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग हुआ है हम्म। ओवरऑल हम्म। वो कितना है। अच्छा, अगर और इसको कम इसको कम हाँ करने का सिर्फ डेक्स ऑप्टिमाइजेशन है? सिर्फ डेक्स क्वेरी करना है और जो तूने नंबर्स जो तूने विजुअल्स ऐड कर रखे हैं रिपोर्ट में उसको कम कर या तो हम्म। ये अपने डेक्स क्वेरी को सुधारो। तो ये अदर ही चीज है। अदर के लिए है हम्म। डेक्स क्वेरी तो डेक्स क्वेरी है ही डायरेक्ट। हाँ हाँ। विजुअल तो मतलब विजुअल करना ही पड़ेगा। हम्म। अगर अदर में प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों का बेसिकली मिक्सचर है क्या तो डेक्स करो ठीक और विजुअल ठीक कम करो। हाँ, हाँ ठीक है। अब जैसे ये रहा ना, इसमें डेक्स क्वेरी का इतना टाइम था, 1900 लगा। इसमें इतना हाँ। लगा, अदर में तो 1700 लगा। और भाई अचानक डेटा बेस चल गया भाई। हम्म। ठीक है। हम्म। The result of the analysis test help you to understand the behavior of your data model and identify the elements that you need to optimize. हम्म। You can compare the duration of each element in the report and identify the elements that have a long duration. हम्म। You should focus on those elements and investigate why it takes them so long to load on the report page. हम्म। To analyze the queries in more detail, you can use Dex3 ऐसी तैसी हटा इसको। ये लाइन पढ़ूंगा ही नहीं मैं। चल सही। पहले पढ़ लेता है कोई नहीं। और वही विच इज है। फ्री जब भी विच इज फ्री तू कर लेते हैं डाउनलोड ओपन साले को। सोर्स टूल है।
हाँ ओपन फिर कर सोर्स लेंगे है तो फिर फ्री कोई है, इशू। फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर प्रमोट हाँ करेंगे। फिर गुड गुड गुड। हम्म। ठीक है, रिजॉल्व इशू एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। ओके, ओके। the result of your analysis will identify areas of improvement and opportunities for performance optimization. You might find that you need to carry out improvements to the visuals, the DEX query, or other elements in your data model. The following information provides guidance on what to look for the changes that you can make. हम्म। सो विजुअल्स के लिए क्या कर सकते हैं हम? हम्म। इफ यू आइडेंटिफाई विजुअल्स आर द bottleneck leading for the poor performance, हम्म। you should find a way to improve performance with the minimal impact to user experience. ठीक है, हम्म। consider the number of visuals on the report page. Fewer visuals means better performance. Ask yourself if a visual is really necessary and if it कर सकते हैं कि if है ना, अच्छा। if लिखा हाँ हुआ हाँ। if it adds value to the end user. हम्म। If the answer is no, you should remove the visual rather than using multiple visuals on the page. Consider other way to provide additional details, हम्म। such as drill through pages हम्म। and report page tooltips. Okay. हम्म। Examine the number of fields in each visual. The more visuals you have on the report, the higher chance for performance issues. In हम्म। addition, the more visuals, the more the report can appear crowded as and loss clarity. हम्म। The upper limit for visuals is the upper limit. The upper limit for visuals is 100 fields. Measure for columns. Okay, so as visual with more than 100 fields will be slow to load. Ask हम्म। yourself if you really need all these data in a visuals. You might find that you can reduce the number of fields that you currently use. ठीक है, तो ये वही तो वाला बकवास ही करी है पूरी। बकवास की है कि चाहिए कि नहीं आज सेल चाहिए नहीं है तो सेल कम कर दो, अरे तो और इसमें भैया ये ये तो है हमको जेपी, पता है। हाँ। अगर इसमें ये था कि अगर लेट्स से वो कम करने के लिए कि हम्म। ड्रिल थ्रू पेज और ये तेरा रिपोर्ट पेज टूल टिप जो भी है ड्रिल शायद। ड्रिल थ्रू ड्रिल पेज। थ्रू पेज क्या होता है? अभी दिख जा, अभी बता देते हैं। हम्म, ड्रिल राधे राधे राधे। इसमें है क्या कोई? ड्रिल थ्रू कहाँ है भाई? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को क्या पता। सर्च कर लेना, ऊपर आ जाएगा। यहाँ नहीं आ ऊपर रहा? कुछ नहीं आता। अब ये भी कोई ओपन सोर्स दूसरा टूल है क्या? नहीं नहीं, ड्रिल थ्रू पेज कुछ। एक बार वो टूल टिप देख दे भी, ड्रिल थ्रू चलता है वो आ रहा है क्या टूल टिप भी? टूल टिप तो ऐसे कहते हैं ना, कोई भी चीज है टूल टिप तो होगा। एक्सटर्नल टूल नहीं है तो। अलग, नहीं नहीं, ये तो अलग चीज है। अरे बाप रे, अरे भाई खोल के रो भाई। ये क्या भैया, ये तो अलग ही चीज है खुद में। हटा दे हटा दे हटा दे हटा दे, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सटर्नल अरे टूल्स में ओ, देखना तो हाँ देख, एक्सटर्नल टूल्स में आती है। ये देख, डेस्क डेक्स स्टूडियो। स्टूडियो कहाँ है? हाँ ये रहा डेक्स स्टूडियो। तो साले इसके में कैसे आ रखा है ये? हाँ इसमें कैसे? अच्छा वो नहीं, वो अरे अपन को पता क्यों आएगा, एडवांस वो सेटिंग रिबन, में। हाँ हाँ वो रिबन ऐड करना पड़ेगा वो छोड़ो भाई। हम्म, हम्म। हम्म, क्या था ये, कहाँ पे थे? अपन वो सर्च कर रहे थे ड्रिल थ्रू पेज। अरे भैया मुझे से निकल गई। ठीक है, ड्रिल थ्रू पेज कहाँ लिखा है? ड्रिल थ्रू पेज लिखा है, ये रहा, हाँ सही था ये वाला। गूगल सर्च करते हैं, वही बता पाएगा और कौन बताएगा। सेटअप ड्रिल थ्रू। हम्म। ओ, जैसे कुछ भी है समझ गए, जैसे कोई भी ग्राफ बन रहा है, ठीक है। अब तेरे को इस बार के बारे में और जानना है, ठीक है। कि ये हम्म मान ले, ये 50, ये 5K है, ये जैसे कस्टम्स है ना। जैसे हम्म लियो 1K है, तो 1K में भी अगर और डिवीजन होंगे तो क्या होगा? तो तू अगर इस पे क्लिक करेगा तो तेरे को उसके बाद और ड्रिल थ्रू हो जाए, जैसे इस पे राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू में मार्केट बेस हम्म एनालिसिस तू और कुछ डाल दिया तूने, ठीक है। हम्म तो वो इसके अंदर और डिटेल पे आ जाएगा। तो वैसे होगा ना, हम्म। मतलब ऐसा कुछ नहीं कहाँ से है? होता। एट द एड्रेस ड्रिल थ्रू थ्रू फील्ड पेज। हेयर।
ओ, तो हम्म, वो ऐड करेगा तो उसके अंदर वो डिटेल जैसे नहीं तो फोल्डिंग, वो उसको खोलेंगे तो उसके अंदर और निकलेगा, उसको खोलेंगे उसके अंदर और हाँ जाएगा, हाँ हाँ ऐसे हाँ। वाला। वो डिटेल्स डालना उसी के अंदर ही हाँ, एक के बेसिकली। अंदर एक के अंदर एक के अंदर डालना। विजुअल के अंदर ही, ताकि वो नंबर ऑफ विजुअल्स कम हो जाए और हम्म। अब वो कि तो आगे आएगा विजुअल्स में, अगर आएगा तो डिटेल थ्रू तब देख लेंगे हाँ, अच्छे से फिर डिटेल। तब देखते हैं अभी। हाँ, और ये पेज डेक्स क्वेरी। रिपोर्ट पेज टूल टिप्स और देख लेते हैं मैं, अच्छा हाँ, क्या रिपोर्ट होता है, अब पेज टू थोड़ा टिप्स। पता होना चाहिए ना। हम्म। navigation। अच्छा, गुड। ये तो और भी बढ़िया चीज है, ये ज्यादा बढ़िया चीज है। एक में उसने मल्टीपल वो निकाल के दे दिए। हाँ, तो मतलब जैसे टूल टिप्स किसे कहते हैं, ये तेरे को टूल टिप मतलब कुछ भी चीज है जिसके ऊपर मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, कर्सर, और हम्म ये मेरे को स्टैक्ड बार चार्ट नहीं लिखा रहा, इसे टूल हम्म टिप कहते हैं। मतलब कभी भी तो हवर ओवर करता है ना किसी पे और एक बॉक्स बन के आता है और जो उसके बारे में बताता है, उसे अपन टूल हम्म। टिप कहते हैं, ठीक है। हाँ। ठीक है। अब इसके अंदर रिपोर्ट टूल टिप ये हो गई कि अगर मान ले जैसे कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट में मैं हम्म लेके गया तो इस पॉइंट के बारे में बताएगा, तो ये जैसे ये पॉइंट है तो इसकी इस पॉइंट के बारे में बता रहा है कि भैया ये इतना था, इसका एवरेज एनएसटी इतना है, इसका एवरेज ये है, इसका ये है, सेल्स इतना है, समझ रहा है। अब हम्म मान लो बहुत सारा प्रोडक्ट का मैंने बबल चार्ट बनाया, ठीक है। अब वो मेरे को कोई प्रोडक्ट पे मैं लेके गया तो ये कब स्टेब्लिश हुआ था, किस कंपनी का है, क्या है, वो दे दिया, ठीक है। और हाँ। इस बबल चार्ट में साइज बता रहा है, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितनी बार बिका या एवरेज जो भी है, ठीक है। वो तो अभी एक हम्म। दिखा दिया, पर अगर किसी को जानना हो भैया ये अच्छा इसमें सबसे बड़ा प्रोडक्ट कौन है, कब बनाता है, कौन है, तो तू उस पे लेके जाएगा तो वो तेरे को फिर वो डिटेल दे देगा। तो तेरे को नया हम्म चार्ट साइड में बनाने की जरूरत नहीं है सारे का, ये बेस्ट समझ। रहेगा उसके लिए, हम्म। है ना। तो ये सब चीजें आगे आएंगी कैसे बनानी है वो तब देख लेंगे, नहीं आएगी तो अपन सीख लेंगे। खुद पर से कर बढ़िया लेंगे वही। चीज है ये तो, है ना। हम्म। ठीक है, तो मैं लिख लो नोट में। लिख यार। ए, ये नु। देख मैं बता ये रहा गेनू कौन आ गया? कोने एनु एनु एनु। भाई बहुत क्या? बड़ा है ये तो। अरे भैंस की खोपड़ी है कि वो। देख रहा तू कितना बड़ा है भैया। और यही हो पाएगा आज मैक्सिमम, वैसे भी अपन ने एक दो तीन कर लिए, ठीक है। कल भी अगर एक हाँ, दो और तीन में तो कल खत्म। बढ़िया। तो आज तो यही हो पाएगा, ये लास्ट ये पूरा खत्म कर देंगे तो ही हो। खत्म तो करते हैं इसको, पर तू जल्दी कर फिर अब। अरे देख आधा कर लिया, आधा ही बचा। गुड। आगे तो फिर ये छोटे छोटे पॉइंट ही हैं। आगे फिर वही लिखा है तो फंक्शंस यूज मिलने लग गया भाई ये तो। मेटा डेटा, कॉलम हाँ, रिलेशनशिप। कॉलम रिलेशनशिप डेटा मॉडल। ये तो ये कहाँ ऐसे से आया अचानक से बीच में? ये क्या आ गया है? समझ कोई बीच में बड़ी हेडिंग भी नहीं है। हाँ पता नहीं क्या, कॉलम में डेटा, ये सब डेफिनेशंस हैं शायद ना, क्या क्या होता है। कहाँ से आ ओ, गया बीच में ये? पता नहीं भैया, ऑटो टाइम, ओहो इसके। इंटेलिजेंस वैसे तो खत्म हो गया। चल रुक जा, मैं हम्म, लिख लेता हूँ यार थोड़ा। हाँ तो लिख ले लिख क्या ले। रिवीजन करते वक्त कौन खोलेगा ये सब चीजें? नीचे 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 और नीचे। ये रहा। हम्म, नोट में क्या लिखूं? कि मोर विजुअल्स ऐड करने की बजाय जो विजुअल्स हम्म ऑलरेडी हैं उन्हीं हम्म में ड्रिल थ्रू और टूल इंस्टेड टिप ऐड कर दो। ऑफ क्रिएटिंग मोर विजुअल्स, ऐड, क्या होगा, रिपोर्ट हाँ, रिपोर्ट पेज पेज टूल टिप्स। टूल टिप्स, ये तो बढ़िया चीज है यार। हम्म। और दूसरे ड्रिल थ्रू पेजेस। ड्रिल थ्रो पेज भी बढ़िया ही होगा। ड्रिल थ्रो, ये तो मैं यूज ये तो अच्छी चीज बच गई, ये तो यूज करनी ही चाहिए भैया। हम्म गुड, नाइस। अपन अपनी रिपोर्ट बनाएंगे तो यूज करेंगे। हम्म। वेरी गुड, ठीक है, अब पढ़ो। डेक्स क्वेरी नीचे। एक सेकेंड, ये 100 फील्ड वाला क्या होता है कि मैक्सिमम 100 फील्ड ही होनी चाहिए ना, ये लिख देता हाँ, हूँ। अपर लिमिट है उसकी 100 फिल। ठीक है।
अपर लिमिट हाँ मतलब 100 के बाद भी ले सकता ले है वो। सकता है, उसके बाद बहुत दिक्कत आने लगी। बहुत स्लो हो जाएगा हाँ। 100 फील्ड तो बहुत होता है ना, मतलब 100 तो कॉलम्स एक तरीके से डिस्प्ले है ना। 100 फील्ड्स ना वही हुआ कि मतलब कोई भी चीज विजुअल क्रिएट कर रहा है उसमें 100 चीज का डेटा दिखाएगा वो ना। हाँ मतलब 100 कॉलम ले लेते 100 हैं एक 100 को तरीके से। प्रोसेस करके डेटा दिखाएगा करेक्ट। हम्म, या 100 कॉलम ले या ले एक तो एक तरीके से देख। 100 मेजर्स कॉलम और हाँ हाँ कॉलम्स हाँ। तो मेजर करेक्ट भी करेक्ट कॉलम मेजर का जैसे ही होता है कॉलम। ना, मेजर्स और कॉलम। हाँ 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 हाँ। ठीक है, आप पढ़ लो। बोलो, अच्छा ठीक है। डेक्स क्वेरी when you examine the results in the performance analyzer pane you can see how long it took हम्म the Power BI desktop engine to evaluate each query in milliseconds. A good starting point is any text query that is taking longer than 120 millisecond. Uh, that is okay, a good starting point is any text query that is taking long. अच्छा मतलब जो हम्म ज्यादा ले रहा है तो उससे start करो okay. In this example, you identify one particular query that has a larger duration time. हम्म Okay, 2754. Okay. हम्म Performance analyzer highlights potential issues, but हम्म does not tell you what need to be done to improve them. हम्म You might want to conduct further investigation into why this measure takes so long to process. हम्म You can use Dex Studio to investigate your queries in more detail. एक भाई सर मुझे लग रहा है इसका, हाँ ये कड़क नेक्स्ट, बोल। ये करवा के छोड़ेगा इंस्टॉल ऊपर से। करवा के। और ये पूरा ऑप्टिमाइजेशन के लिए इन्होंने अलग ही बना रखा है डेक्स हाँ ये स्टूडियो ये। डेक्स के लिए हाँ डेक्स हाँ के लिए ही है ये। वही। ठीक है भाई। For example, select copy query to copy the calculation formula onto the clipboard, then paste it into Dex Studio. हम्म You can then review the calculation step in more detail. In this example, you are trying to count the total number of products with order quantities greater than or equal to 5. हम्म Okay, so okay. After analyzing the query, you can use your own knowledge and experience to identify where the performance issues are. You can also try using different X function to see if they improve performance. In the following example, the filter function was replaced with the keep filter function. Acha. When the test was run again in performance analyzer, the duration was shorter as a result of the uh, keep filter function. Oh, तो समझ। एक ये क्वेरी डालो चेक करो ज्यादा टाइम ले रही है तो हम्म ट्राई करो दूसरा फंक्शन डालने की अगर वो अच्छा चला तो वो उठा के वो डाल दो सिस्टम में है ना। हम्म ये कहना चाह रहा है ना ये। करेक्ट करेक्ट। In this case, you can replace the filter function with the key filter function to significantly reduce the evaluation duration time for this query. When you make this change to check whether the duration time has improved or not, clear the data cache and then return the performance analyzer process. फिफ्टी Okay. फोर हो गया सीधा, बहुत कम अंतर आ गया। वही तो तो ये इतना ज्यादा आया बे। तो ये क्या कह रहा है कि जो डेक्स स्टूडियो है ना, अगर उसके हम्म। अंदर तू डायरेक्ट जो तूने मेजर क्रिएट किया है, एक मेजर है ना, ठीक है, हाँ हाँ ये मेजर तूने क्रिएट किया है तो उस मेजर का फॉर्मूला तू डायरेक्ट डेक्स स्टूडियो में डाल दे, ठीक है। हाँ तो भी अपन रिव्यू कर सकते हैं ना करेक्ट। कि कॉपी एंड पेस्ट इन डेक्स स्टूडियो, यू कैन देन रिव्यू द कैलकुलेशन स्टेप इन मोर डिटेल, इन एग्जांपल यू कैन ट्राई टू यस। काउंट द टोटल नंबर प्रोडक्ट दिस इज 5 लेजेंड अगर यू कैन सी द नॉलेज। तो इसके बाद तो उसने टेक्स्ट स्टूडियो का तो नाम ही नहीं लिया। नहीं फिर उसने ये बोला ना आफ्टर एनालाइजिंग द क्वेरी यू कैन यूज योर ओन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू आइडेंटिफाई वेयर द परफॉर्मेंस इश्यूज आर। वो डेक्स क्वेरी में देखने को मिलेगा कि भाई कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है मे बी हाँ स्टेप बाय डेक्स्ट स्टेप स्टूडियो ही दिखाता है। मेरे को लगता है वो उसको बताना चाहिए कितना टाइम लगेगा इसको रन करने के हाँ लिए, वो ही बता वो दे। क्योंकि वही बार मे बार बी। फंक्शन चेंज करके काटो बंद करो, इतना बावड़ा हो जाऊं मैं। हाँ नहीं वो होगा क्या ना कि जो फंक्शन की जगह पे लेट्स से कहीं पे दिखाएगा कोई वीकर पॉइंट है जो हम्म जिस जिस पर्टिकुलर हाँ फिल्टर तो को या डेक्स्ट फिर जो भी। स्टूडियो हेल्प कर देगा, फिर जब मेन पे फिर हाँ इम्प्लीमेंट करके देखो कि सच्ची में हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ तो जो वही ये फिर चेंज करके फिर उसमें डाल के देख लो। ठीक है ओके। अभी डेटा मॉडल कहाँ से रैंडम आ गया भाई ये। तो इसमें तो आउट ऑफ हाँ डेटा कॉन्टेक्स्ट मॉडल, है नहीं। नहीं डेटा मॉडल में कुछ दिक्कत हो तो शायद कहता होगा, मेरे को क्या पता। हाँ लेकिन ये मतलब ऐसे ही हाँ लेकिन
ठीक है, इसीलिए चल। इसके ऊपर वाले में तो कुछ लिखने लायक है नहीं ना, ऐसे ही है वो तो। डेक्स स्टूडियो से जाके डेक्स ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे। हाँ, वही। ठीक है। इसमें तो क्या ही है, इसमें डेक्स ही डेक्स चल रहा है। हम्म। ठीक है, डेटा मॉडल। हम्म। If the duration of measures and visuals are displaying low values, हम्म। in other words, they have a short duration time, हम्म। they are not the reason for the performance issues. Instead, if the text query is this, एक second, duration of the measure values and displaying low values. In other If words, the they have a duration short. of measures They are and not the visuals reason. displaying lower value. Uh-huh. In other words, They are they not the reason for the performance issues. Okay. Instead, if the text query is displaying a high duration value, it is likely that a measure is written poorly or an issue has occurred with the data model. Okay. वो पहले ना थोड़ी समझ कम आई। मेरे को अभी The तक non नहीं है। okay, if the duration displaying low value, that means वो अच्छे है ना, अच्छी बात है, अगर कम वैल्यू दिखा रहे हैं हाँ तो वो नहीं। तो सही बात है ना। They are not the reason for the performance issues. ये तो कुछ और ही है, लो वैल्यूज। ये देखिए कह रहा है, मेरे displaying को दोबारा पढ़ता मैं पढ़ता हूँ देख। ठीक है, हाँ इफ द ड्यूरेशन ऑफ मेजर्स एंड विजुअल्स आर displaying lower values, in other words they have a shorter duration of time. ठीक है, हम्म। there are there are not the reason, they are not the reason for the performance अच्छा, issue. ओके, गॉट इट। ओ, मैंने कॉमा मिस कर दिया। हाँ हाँ। परफॉर्मेंस इशू, ठीक है। हम्म। इंस्टेड इफ द रेक्स क्वेरी इज डिस्प्लेइंग ए हायर ड्यूरेशन वैल्यू, ठीक है, वो तो एक हाँ अलग चीज होगी, खत्म हो गई। अब अगर आ हाँ गया कि अगर तेरे कोई डेक्स क्वेरी है वो जो तेरी हायर टाइम दिखा रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, हाँ तो हाँ इट हाँ इज हाँ। लाइकली दैट अ मेजर इज रिटर्न पुअरली। अब देख, क्योंकि एक बार मेजर की बात कर चुका है ना, दोबारा भी मेजर की बात कर रहा है कि करेक्ट अगर करेक्ट करेक्ट मेजर इज करेक्ट रिटर्न करेक्ट करेक्ट पुअरली और अन इशू हैज करेक्ट। अकर्ड विद द डेटा मॉडल, कि अगर डेक्स क्वेरी हम्म। अगर टाइम लगा रही है तो मेजर से, तो डेक्स क्वेरी क्या होती है, मेजर के लिए तो लिखते हैं ना डेक्स क्वेरी। ठीक है, हम्म। मेजर या कॉलम कर क्रिएट करने के लिए डेक्स क्वेरी तो लिखते हैं। हम्म। तो वो वाला बता रहा है कि क्या तो मेजर में दिक्कत होगी या फिर तेरे डेटा मॉडल में दिक्कत है, जो तूने डेटा डेटा मॉडल। मॉडल में दिस दिक्कत है, इशू करेक्ट। विल बी कॉज्ड बाय अ रिलेशनशिप। मान ले तूने रिलेशनशिप ही गलत कर दिया है, ठीक है, वो मल्टी हम्म। टू मल्टी कर रखा और कुछ, और मेटा डेटा इन योर मॉडल। अगर मेटा डेटा क्या होता है, जो तेरा बताता है कि तेरा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है ना, उसमें कुछ हाँ। दिक्कत होगी। ठीक है, अपने डेटा के बारे में ज्यादा बताया नहीं। और इट कुड बी द स्टेटस ऑफ ऑटो डेट टाइम ऑप्शंस एज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग सेक्शन। आगे बताएगा, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं बताया, ठीक। चलो आगे। हाँ, relationships. हम्म। You should review the relationship between your tables to ensure that you have established the correct relationships. हम्म। Check that relationship cardinality properties are correctly configured. For example, a one side column that contains unique values might be incorrectly configured as many side columns. हम्म। You will learn more about how cardinality affects performance later in this module. वो एरो पढ़ एरो लेते है हैं। ना, हाँ, एरो वही है, हमेशा वही। मल्टी की तरफ होना चाहिए। करेक्ट। हम्म। सो एरो मल्टी की इट तरफ इज होना चाहिए, वन की तरफ होना चाहिए। एरो हम्म। वन से मल्टी की तरफ, हाँ सही है। मल्टी की तरफ जाता सही सही। कंफ्यूजन कंफ्यूजन। अब कॉलम। है। हाँ, columns. हम्म। So it is best practice to not import columns of data that you do not need. To avoid deleting columns in Power Query Editor, you should try to deal with them at the source when loading data into Power BI Desktop. हम्म। However, if it is impossible to remove redundant columns from the source query or the data has already been imported in its raw state, you can always use Power Query Editor to examine हम्म। each column. Ask yourself if you really need each column and try to identify the benefit that each one adds to your data model. If you find that a column adds no value, you should remove it from your data model. For example, suppose that you have ID column with thousands of unique rows. You know that you won't use the particular column in a relationship, so it will not be used in a report. Therefore, हम्म। you should consider the column as unnecessary and admit that it is wasting space in your data model. Okay. When you remove an unnecessary column, you will reduce the size of the data model, which in turn results in a small file size and fast refresh time.
Also, because the data set contains only relevant data, the overall report performance will be improved. बकवास कर रहा है ये। बकवास. Rather, metadata. हम्म। Metadata is information about other data. हम्म। Power BI metadata contains information on your data model, such as name, data type, and format of each of the column, हम्म। the schemas of the database, the report design, when the file was last modified, the data refresh rate, and much more. हम्म। When you load data into Power BI desktop, it is good practice to analyze the corresponding metadata so you can identify any inconsistency with your data set and normalize the data before you start to build reports. हम्म। Okay. Running analysis on your metadata will improve data model performance because while analyzing your metadata, you will identify unnecessary columns, error within your data, incorrect data types, the volume of data being loaded, that is large data sets including transactional or historic data, will take longer to load and much more. ठीक है. अभी कैसे चेक करेंगे वो बताओ। ये कैसे चेक करेंगे? हम्म। वो तो अपन को वैसे चेक करना पड़ेगा ना यार कि खुद से क्यों चाहिए कि नहीं चाहिए टाइप्स वाला चीज. हाँ ये तो मतलब प्रॉपर वो डेटा को ही चेक करना हो गया, मतलब क्लीनिंग करना डेटा की, वो वाला हो गया लिंक ना। करने वाला चीज है ना. और क्या कर सकते हैं जीपी इसमें यार. हम्म। एरर वाला चीज हो गया. हम्म। डेटा टाइप्स वगैरह और तो क्या ही तरीके हैं. खुद सही से बात करना है। मैनुअल. मैनुअल वर्क किया नहीं तो. मेटा डेटा होता है अदर डेटा, ठीक है, जो तेरा हाँ. मेन रो डेटा के अलावा डेटा के बारे में, डेटा डेटा अबाउट डेटा। डेटा क्या. डेटा अबाउट डेटा. हाँ. जैसे कि ये हो गया, उसका नेम्स क्या है, डेटा टाइप डेटा क्या टाइप्स. है, हाँ. इन वही वही और वही क्या हो बोल गया, रहे हो. और क्या हो गया, स्कीमा। स्टोरेज. हाँ. स्कीमा ऑफ डेटा सेट, मतलब कौन स्टार है, रिपोर्ट डिजाइन. ठीक है, फिर एंड व्हेन रिपोर्ट के फाइल बारे वाज में लास्ट रिपोर्ट। मॉडिफाइड. हाँ रिपोर्ट डिजाइन, रिपोर्ट का रिफ्रेश रेट. जैसे हाँ. ला, क्या, लास्ट मॉडिफाइड मॉडिफाई. हाँ. फाइड, और हम्म. डेटा रिफ्रेश। हाँ अभी मेरे हम्म. को एक चीज और इससे मेरे को स्ट्राइक हुई, बताऊँ कैसे, क्या होता है, हम्म. मैं हमारे में क्या होता है, हम इंक्रीमेंटल फाइल रन करते हैं, ठीक है, देखो ये भी एक बढ़िया चीज होती है। क्या होता है हम्म. कि हम डेटा सेंड करते हैं, ठीक है, हम्म. उसे फुल कॉपी कहते हैं, मतलब पूरा डेटा भेजना, ठीक है। अब क्या होता है कि हम्म. अब डेटा इतना सारा है कि रोज रोज बार बार फुल को भेजने का क्या फायदा ना। तो हम हम्म. इंक्रीमेंटल डेटा भेजते हैं। इंक्रीमेंटल डेटा क्या होता है कि लास्ट सक्सेसफुल रन डेट को पिक करता है, और उसके बाद कोई डेटा अगर में चेंजेस हुआ है तो वो डेटा भेज देता है। तो तू क्या करेगा कि अगर कुछ चेंजेस हुआ है तो खाली वही डेटा को तू उसमें अपने डेटा में अपडेट करेगा, क्योंकि बार बार पूरा डेटा को कौन अपडेट करेगा, सही बात है ना, टाइम वेस्ट होता है। करेक्ट. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लास्ट सक्सेसफुल रन रेट पिक होता है, ठीक है। तो वो स्टोर हम्म. कहाँ होता है, वो होता है एटम के अंदर, ठीक है। हम्म. अब क्या होता है, हम जब एटम रिहाइड्रेशन करते हैं ना, कि मतलब कुछ दो तीन 30 दिन या 90 दिन के अंदर एटम को क्लोज करके नया एटम बनाना पड़ता है ना। तब क्या होता है कि तब पहली इंक्रीमेंटल फाइल जो रन होती है ना, वो पूरा का पूरा फुल का फाइल ही होती है, क्योंकि वो अच्छा. अपना लास्ट सक्सेसफुल रन रेट जब डिलीट करते तो गायब हो जाता है। तो जैसे वो मेटा डेटा होता है ना उस एटम का, वो जब वो हम्म. डिलीट हो गया पूरा, ठीक है, क्योंकि उसके मेटा डेटा में लास्ट सक्सेसफुल रन रेट स्टोर होती है ना, वरना और कहीं तो स्टोर करते ही नहीं है। हम्म. तो तब मेरे को बोल रहा था कि आज हमारी डिस्कशन हो रहा था, तब मैं बोला था कि उसे इंक्रीमेंटल फाइल में क्यों चेंज करना है ना, उसमें तो डेटा हम्म. कम ही होता है। तब बोली नहीं ना, जब अपन एटम रीएड्रेशन करते हैं तो पहली बार जब रन होती है तो फुल फाइल होती है। मैं बोला, क्यों, क्योंकि वो लास्ट सक्सेसफुल रन रेट तो चली जाती है। मतलब क्यों चली हम्म. जाती है, क्योंकि वो तो अपन एटम से ही लेते हैं ना। वो हाँ. तो मैं बोला वो एटम का मेटा डेटा यूज करते हैं, वो कहीं स्टोर नहीं कर रहे उस चीज को। उनको स्टोर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। स्टोर. मतलब यूज क्या करोगे फिर उसको बाद में. लास्ट सक्सेसफुल रन रेट, हाँ लास्ट कब सक्सेसफुल हुआ है उसके बाद कर। एक सेकंड देखिए. क्या कर रहा है तू, कचर पचर। ना ना कुछ नहीं छोड़, कुछ रहने नहीं. दे, बाद में बात करेंगे, अब आगे बता। हाँ. ओके.
In Power Query option includes हम्म unnecessary columns. Evaluate the need of each column. If one हम्म। or more column will not be अच्छा, used in the ये सब report, and बकवास then है, तू फटाफट पढ़ तेजी unnecessary से। rows अच्छा पूरा पढ़ो तो ठीक है। हम्म You should remove them by using the remove column option ठीक है। Then हम्म unnecessary rows check out the same as column वो और रिमूव remove कॉलम करनी डेटा है। data टाइप्स। types evaluate the data types to ensure that each one is correct okay भी ठीक है। वो ट्रांसफॉर्म में जाके अगर गलत है तो हाँ वही वहाँ पे इंटीजर का डेटा। इंटीजर का तो वन टू हाँ हाँ 1 2 3 स्ट्रिंग का वो कर दो, ठीक है। क्वेरी क्वेरी नेम नेम्स डबल क्लिक करके वो क्वेरी नेम भी चेंज हो जाएगा। अच्छा वो भी हो जाता है क्वेरी अभी ठीक मैं है। बता देता हूँ, 2 ही सेकंड रुको। ये सब क्या, आप टेंशन मत वो लो। भी यूज करते हैं वो भी यूज इंस्टेंट करते इंस्टेंट बता देता हूँ मैं। हैं। 1 सेकंड रुको, देखो इंस्टेंटली फटाफट ये भी बता दिया। बता ही दे रहे हैं देखो फिर मत कहना कि बताया नहीं। ये देख, क्वेरी जो बोल रहा था ना वो क्वेरी हो गया। रीनेम करना, डबल क्लिक करो, ठीक है। अगर तेरे को अच्छा रिमूव कॉलम करना है तो यहाँ से हो जाएगा रिमूव कॉलम पे, हाँ जो सिलेक्टेड कॉलम होगा उसको रिमूव कर दो, डिलीट ठीक रिमूव है। रो वहां या से हो फिर जाएगी जो हाँ। सिलेक्टेड के अलावा रिमूव करना है तो वो ये कर सकता है, ठीक है। फिर ओके ये रिमूव रो, टॉप रो, बॉटम रो, अल्टरनेटिव रो, ऐसे अपनी मर्जी से। या फिर किसी ठीक रो में एरर आ रहा है तो डायरेक्ट या ब्लैंक रो या डुप्लीकेट रो भी निकाल सकता है तू, ठीक है। ठीक इसमें सेलेक्टेड रो नहीं है क्या। नहीं शायद इसमें सिलेक्टेड रो नहीं होता है कुछ कि ऐसे तो रो को सिलेक्ट नहीं कर सकता पूरी रो को। कर तो हाँ लिया। हाँ कर सकते हैं राइट क्लिक करूँ, रिमूव ट्राई करूँ, रिमूव करके दो, करना। दो चार और एक पाँच है, ठीक है। नहीं यार, इसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा ना वैसा तो। अ, ऑल्टरनेटिव रो, टॉप रो, बॉटम रो, ये सब भी आ रहा है ना। हम्म, तो तू कौन सी रो हटा सकता, मतलब तेरे वो को। जा तेरा सुन तेरा वो खोल क्रोम खोल। हम्म, क्या अच्छा मल्टीपल तेरे को देखना है। ना ना क्रोम खोलना उसमें देख अपन ने पूरा पढ़ा नहीं उसमें क्या पता उसने कुछ बताया हो, एक बार देख। अच्छा, ऐसा कह रहा है क्या। अभी बता दिया। अब बताओ क्या, बोलो पढ़ो। हम्म। Evaluate the need of each column. If one or more column will not be used in the report, then therefore necessary you should remove them by using the on the home tab. Back इसमें तो रिव्यू रो लिखा हुआ है खाली। मुझे रिमूव है चल कोई नहीं जीपी यार। रुक जा, ये तो इम्पोर्टेंट चीज है। हम्म, रिमूव। कोई अच्छा सुन कहीं तू प्रॉपर टैब में तो था ना। उसे तो हाँ, क्या फर्क पड़ता है। अब वो एक ट्रांस डेटा में जगह। था ना तो हाँ, क्या ही और रिमूव रो था तो सही। हम्म देखिए Click देख। on the remove button located in the home tab. Choose two into the number of rows. अच्छा अच्छा अच्छा, करेक्ट करेक्ट, अपन ने आधे टाइम पे नहीं किया। अपन आधे हाँ में ही डर गए। ये पूरा नहीं कर पाए वो शायद। करके फिर जैसे मांग लेगा रो नंबर। हाँ, रिमूव टॉप रो पे करके। हम्म, अब इसने तो अरे भाई हटा क्या दी, नहीं नहीं, नंबर ऑफ हाँ रोज। नंबर ऑफ पर ये टॉप से हटाएगा ना, देख समझ, ये भी तो दिक्कत की बात है। अगर मान ले मेरे को पहली नहीं हटानी, मेरे को दूसरी और तीसरी दूसरी हटानी, हटानी है तो हाँ। ना मैं अगर यहाँ पे 2 नंबर दो या 3 नंबर दो वो दूंगा ना। तो देख, स्पेसिफाई हाउ मेनी रो टू रिमूव फ्रॉम द टॉप। फ्रॉम द टॉप है नहीं गलत है ये यार। फ्रॉम द टॉप ना, तो उसके लिए पता है क्या करना होता है। पर्टिकुलर रो पर्टिकुलर रो पर्टिकुलरली को करना है ना, स्पेसिफिक रो तो तेरे को हाँ फिल्टर करना पड़ेगा पर्टिकुलर रो के लिए। जैसे मान ले मेरे को ये क्या नाम है इसका, सोनजा को, बटलर सोन सोनजा को हाँ हटाना है, ठीक है, पूरे को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लूंगा, ये पकड़ूंगा, मैं दबा दिया ओके, ठीक है। हम्म ओके दबा दिया। अब सोनजा आ हम्म गया सारा, ठीक है। रिमूव टॉप रो किया और हम्म, 5 लिख दिया, ठीक है। और मैंने हम्म, कर दिया ओके, हट गई। खत- अब मैं यहाँ आया, इसमें से मैंने फिल्टर हटा दिया। मैंने कर दिया, बोला हम्म, डिलीट ब्रो, देखा खेल, ये करना है। हम्म,
समझ गया मेरी टफ बात? है। हाँ वैसा नहीं है, सिंपल थोड़ा नहीं दे रखा डायरेक्ट इन्होंने। नहीं है, थोड़ा, क्योंकि डायरेक्ट तो कैसे दे देंगे, है ना? देना चाहते हम्म, दे सकते थे, पर करीब रह गए थोड़े से दिमाग से। हम्म, मतलब तेरे को फिल्टर का यूज करके फिर रिमूव करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। ऐसे डायरेक्ट तो नहीं है, फिर यही है, ठीक हम्म, है, ऐसे कुछ हम्म, होगा। अरे, च- अरे वो क्यों नहीं दिखा रहा है? अब दिखा तो रहा है। नहीं नहीं, ये दिखा रहा है ना, पर अपने में तो वो है ना, ये देख ये। अब जाएंगे ना क्रोम पे। अरे ये दिखा रहा है, ठीक है, अच्छा। ये नहीं दिखा रहा ना। अच्छा, अच्छी हमें सिखा रही है। बताओ। समझ रहे तो क्या कह रहा हूँ मैं? हम्म, उसके भी दो इंस्टेंस लिए ना उसने, साले ने। तो हमेशा से ही नहीं दिखाता क्या? ऐसे तो यार गलत हो जाएगा। पता नहीं यार, ये तो गंदी बात है। ये तो इसका पार्ट तो था, लेना तो चाहिए। चलो छोड़, बाद में देखेंगे। हम्म। अरे भाई, क्रोम ही गायब कर दी इसने तो। वो भी सक रहा है क्या ब्रो? अच्छा, इसका है मैं ना? क्या? नहीं नहीं, वो भी सक रहा है क्या? ले लिया मैंने, शायद गलती से चेंज कर दिया होगा, मेरे से हो गया। हम्म, बताओ बताओ, आप बताओ। ठीक है, ये ठीक सब है। हो गया बकवास, क्वेरी बताओ। हाँ ये सब हो गया, ठीक है। हम्म क्वेरी नेम भी बता दिया, कॉलम डिटेल्स कर दिया हमने। हम्म क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, वो सब आ ही गया था। और रीनेम वाला ही तो है, राइट क्लिक करके। हाँ वही वही वही। अब ये तो हमेशा चीज रखे, ये कॉलम तो। डिटेल, तीन चीज तेरे को करनी है, तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे को जाना व्यू में, जैसे ऊपर ट्रांसफॉर्म था ना, ऐसे हाँ ऐड कॉलम और व्यू, ठीक है? तो वो तेरे पावर करेक्ट। क्वेरी के अंदर, पावर क्वेरी खोल लिया ना तूने, पहले ट्रांसफॉर्म डेटा हाँ में हाँ जाने के बाद व्यू में जाके तेरे को ये तीन चीज सेलेक्ट करनी है: कॉलम करेक्ट। क्वालिटी, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन और कॉलम प्रोफाइल। ऊपर। ये तीन सेलेक्ट करनी है, हाँ, तो ये तीन चीज आएगी। एक तो एक, हेल्थ बता देगा कॉलम का हाँ, तो बेसिकली। कॉलम क्वालिटी में तो तेरे को ये बता देगा वैलिड क्या है, एरर कितना है, हाँ एम्प्टी कितना है, ठीक है? कॉलम हाँ डिस्ट्रीब्यूशन में तेरा वो डिस्टिंक्ट और तेरा यूनिक के बारे में बता देगा, ठीक है? हाँ। और कॉलम प्रोफाइल करेगा ना, तो तेरे को ये ऐसे स्टैट नीचे बना जाएगा प्रॉपर, कि काउंट कितना हम्म, है, एम्प्टी कितना है, डिस्टिंक्ट कितना है, जीरो कितना है, मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, एवरेज क्या हाँ है, पूरा स्टैटिस्टिक्स बता देगा। उससे करेक्ट तो करेक्ट। थोड़ा आसान हो जाएगा एनालाइज करना, बस यही है। हाँ ठीक है। हाँ तो ये। नोट है कि if हाँ। you are reviewing a large data set with more than 1,000 rows हम्म and you want to analyze the whole data set, you need to change the default option at the bottom of the window. हम्म Select column profiling based on the top 1,000 rows, column profiling based on the करेक्ट, entire data. समझा अब ये क्या है? Okay. हाँ समझ गया, वो लिमिट लगती है उसमें से, 1,000 रो का करता होगा। हाँ, और बाद में फिर एंटायर डेटाबेस करना पड़ेगा ताकि पूरा। करेक्ट। जो अपन खोलता है ना पावर क्वेरी, उसमें वो 1000 दिखाता है, डिफॉल्ट 1000 का ही 1,000, होता है। हाँ हाँ। तो तेरे को अगर करेक्ट। पूरा एंटायर डेटा सेट करना पड़ेगा, ये नोट की चीज है, ये आ सकती है क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, अब बढ़ो। ठीक है। Other metadata that you should consider in the information about the data model as whole, such as the file size and the data refresh rate. हम्म You can find the metadata in the associated Power BI desktop.pbx file. The data that you are load into the Power BI desktop is compressed and stored in the disk by the VertiPack storage engine. ओके, VertiPack. Okay. फैक्ट। Okay. ये याद रखते हैं, पूछ लेंगे साले। हम्म The size of your data model has a direct impact on its performance. A smaller size data model uses less resources हम्म and achieves faster data refresh, calculation, and रेंडरिंग विजुअल्स। rendering of visuals in reports. ठीक है। Auto daytime feature. अच्छा, Uh, मतलब जो तू लोड करता है वो तेरा डेटा, वो किसी कंप्रेस्ड करके वो स्टोर्ड होता है डिस्क के अंदर, जो कि store बट। disk के अंदर pack storage engine है। ओके, नोट ये लिख What लो। pack pack what pack फोर्टी पैक में क्या स्टोर होता है तेरा डेटा? vertical pack what pack। बस खत्म होने वाला है अब तो, जैसे, हम्म, वैसे थोड़ा सा ही बचा है ये, बस देख खत्म, फिक्स हो जाएगा। खत्म। Auto daytime feature। पढ़ो पढ़ो। ठीक है। Another item to consider when optimizing performance is the auto date time option in Power BI desktop. By default, this feature is enabled globally, which means the Power BI desktop automatically creates a hidden calculation table for each date column provided that certain conditions are met. The new
Hidden table are in addition to the table that you already have to have in your data set. Okay. The auto date time option allows you to work with time intelligence when filtering, grouping, and drilling down through calendar time periods. We recommend that you keep the auto date time option enabled only when you work with calendar time periods and when you have simplistic model requirements in relation to time. Okay. In your data resource, already define a date dimension table. Mm-hmm. The table should be used to consistently define time within your organization, and you should disable the global auto date time option. अगर already है तो उसको disable कर दो basically Mm-hmm. वही है. Mm-hmm. Disabling this option can lower the size of your data model and reduce the refresh time. Correct. You can disable this auto date time of date and time option globally so that it applies to all of your Power BI desktop files, or you can disable this option for the current file so that it applies to an individual file only. Okay. Then disable this auto date time option. Go to the file option setting in options and then select the global or current file page. On either page, select data load, and then in the time intelligence section, select or clear the checkboxes required. बस ग्लोबल के यही अंदर है. डेटा को लगता है तो हाँ वो एक वही है टेबल क्रिएट कर देगा खुद से अगर Mm-hmm. ऑलरेडी है और तभी क्रिएट करनी है जब डेट वेट से रिलेटेड करना है और नहीं तो मांगेगा तो ठीक है कि नहीं Mm-hmm. बेसिक बेसिक चीज है ऑप्शन जाके डेटा लोड. ऑप्शन में जाके ग्लोबल के अंदर आता है ग्लोबल डेटा लोड में. उसमें टिक और अनटिक कर सकते हैं टाइम इंटेलिजेंस के अंदर उसमें जाके डेटा लोड में जाके फिर तेरे को टिक एंड अनटिक करना. टाइम बस चाहिए इंटेलिजेंस. तो टिक कर दो नहीं चाहिए तो अनटिक कर दो बस तो अगर तेरे पास पहले से डेटा का मतलब डेट का है तो जरूरत नहीं है ना. जरूरत नहीं है हाँ तो जरूरत नहीं है हम्म. वही ये तो और है. बनाने की जरूरत भी तभी है अगर तेरे को जो टास्क परफॉर्म जो तेरे को जो डेटा है वो टाइम से रिलेटेड टाइम तेरे को से जो भी चीज रिलेटेड चाहिए कुछ वही काम है जरूरत है तो ही तेरे को वो वो करना. इनेबल करो हाँ वरना तो मत ही करो. वरना तो मत ही करो क्योंकि फालतू में साइज ही बढ़ाएगी तेरे डेटाबेस का ही है हाँ. एक टेबल एडिशनली क्रिएट करेगी तो इस चक्कर में ठीक है, तो ये तेरे टाइम से रिलेटेड ज्यादा ही काम हो तो करना है ना. तो हाँ तू तो ही डिसे करना अगर तेरे पास वो ऑलरेडी डाटा टेबल डायमेंशन टेबल है तो डाटा टेबल टू डेट डायमेंशन टेबल है तो जरूरत नहीं है इसको हाँ विद इन मतलब तेरी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का हिसाब से है सारा दे रखा है टाइम टाइम का. हाँ तो तू ये ग्लोबल वाला ऑटो मतलब डेट वाला ऑप्शन डिसेबल कर सकता है. हाँ लिखा है थर्ड पैराग्राफ में इफ यू डेट हाँ. हाँ if your data resource already defines a date dimension table then table should be used to consistently define time within your organization हम्म. तो ये टाइम क्या and डिफाइन मतलब वो है कि तेरा हर चीज की डेट दे रखी है. हर हाँ तो इसमें देख वो करता है तेरा क्या क्या हिडन कैलकुलेशन वगैरह साला सीन है देख इसमें हम्म. तो ठीक क्या है. बोलते हैं मतलब ग्रुपिंग वाला सीन और पता नहीं क्या क्या छूट यहाँ पे ये तो अनेबल डिसेबल वाला बता रखा है. वर्क विथ हाँ पर हाँ अगर तेरे पास है ऑलरेडी तो डिसेबल रखो तो. बस वही है हाँ नहीं तो फिर मत रखो. करेक्ट चलो ठीक है लौंडे हो गया कंप्लीट. गुड फिर कल के लिए तो हाँ कल का भी कर ही देंगे फटाक से वो भी हो ही जाएगा हम्म. हम्म। कल फिर क्या करना है. फिर तो ये वाला हो गया अपना मॉडल तो हो गया कल अपना मॉडलिंग खत्म है ना हाँ कल मॉडल पूरा खत्म हो जाएगा. और फिर बाद में फिर तो फ्राइडे छोटे को. छोटे बाकी है हाँ फ्राइडे को खत्म हो जाएगा. नहीं विजुअलाइजेशन बड़ा है ना 4 है ना उसमें. अच्छा विजुअलाइजेशन बड़ा है हाँ उसमें भी 4 ऐसे एक्सरसाइज है तो 4 दिन उम्मीद है कि 4 दिन में खत्म कर देंगे. तो हम्म उम्मीद कितने तक की 19-20 तक खत्म करने की उम्मीद है. कि कल 16 17 18 19 20 20 तक खत्म करने की उम्मीद रहेगी. और अगर मेरे को तो पहले वाले मॉड्यूल्स भी पढ़ने हैं वो तो मैंने वो तो पढ़े ही नहीं ये सभी आ गए जो तूने मोस्टली रिपीट कर लिया वो अभी बाद में पढ़ ले चाहे अभी इन्हीं का वो जो हाँ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ले पहले. वो है कि वो अगर ये कर लूंगा तो वो अपने वो आप हो ही जाएगा इंट्रोडक्शन ही था तो वही चीज वापस रिपीट होती है जो चीज पढ़े. हम्म फिर वो लास्ट हाँ में देख लियो पहले यहाँ की इनकी एक्सरसाइज करना चालू कर दिया क्योंकि अपन
3 एक्सरसाइज होनी चाहिए। मैंने भी पहले थोड़ी सी की है बस। समझ गया? नहीं समझा? समझे ब्रो। इससे पहले वाले में 3 थी ना। इससे पहले वाले में 2 थी, उससे पहले वाले में 1 थी। मॉडल के अंदर 3 है ना टोटल। तो वो 3 एक्सरसाइजेज कर, इतने अपन विजुअलाइजेशन पे आ जाएंगे। फिर उसकी चारों की शायद 3 तो है ही, उसमें उसमें भी 3 है हम्म एक्सरसाइज। तो उसकी 3 कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद वो एनालिसिस की शायद 1 या 2 है, उसमें है नहीं। फिर उसके बाद हम्म करता रहियो तो आगे का थ्योरी रहेगी फिर तो। हम्म, फिर इसके बाद मेरे पास वो है क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट का शायद। एक है साइट है इनकी, मेरे को शायद फ्री हाँ में दे रखा है। तेरे को फ्री में होगा, तू भी देखियो। हाँ ऑर्गेनाइजेशन हाँ। लेवल पे सैंपल डेटा सेट फ्री देता है, मतलब सैंपल क्वेश्चन हाँ, पेपर इनका खुद अच्छा का। अच्छा। तो उसमें वो फिर वहां से क्वेश्चन करा करेंगे दोनों बैठ के। हम्म, ठीक है ब्रो। हम्म, चलो। ओके बाय। ओके ब्रो, चल बाय। बंद कर।